Dear listeners, welcome back to my podcast In Conversation With. This podcast is usually hosted when we have some occasions or some special events that occur. We usually host it both in English and Hindi. Today is our special editions for India. It's the India's Engineers Day coming up. Of course, the Global Engineers Day is held in the month of March and for a different purpose. But in India, we have the legendary man, Mokshgundam Vishweshwaraya. I'll call him Shri Mokshgundam Vishweshwaraya, not M. Vishweshwaraya, because as Indians, we should be able to pronounce it properly. We should be able to know that man, the legend. And of course, at the time of independence, the bridges and canals and the factories and steel plants were being built, and a lot of that was being built with the help of larger global giants and bipolar giants like USSR and USA. A lot of things happened in the early and young India of 1947 and 1950. And public sector undertakings were a child of that because that time private sector hadn't matured enough. So we didn't have large number of private players who could come up and set up these industries. Like the mantra in the current ages is um, uh, the government has no business of being in business. But in those days, there was no Mittal Steel or there was no Tata Steel. So there was Tata Steel, but not that big. That's the reason, say, Steel Authority of India was set up or energy companies were set up. So that was the beginning for India. Uh, but today we will be celebrating how the India's engineering backbone, any country's growth usually comes from agriculture, manufacturing, and then services. So India has been a master in agriculture. We have been feeding, we have been the rice bowl or wheat bowl for the whole world as well as India. We are known for our silk and spices. But when India moved from agriculture to manufacturing, that's where the industries and engineering came into picture. And then Mokshgundam Vishweshwaraya was a legend, and then he set up a lot of hydel power plants, and he was a statesman. He helped the government. He advised them. So that showed the role of early stage engineering as an advisory services, and in general, how any country matures enough. Of course, what India today is an engineering powerhouse. We make from pin to a plane. Even larger companies like Airbus and Boeing are set up manufacturing facilities because Indians, we are a 1.5 billion people. We fly a lot. So we need planes a lot. Our companies are placing large orders. So the manufacturing journey or the engineering journey for India has taken a long turn, and we have come a long way. But as you know that tomorrow, or maybe when the podcast comes out, it's today, is Engineers Day. So we'll try to keep this conversation in Hindi. We'll try to switch it bit in Hindi and English, and depending on how the conversation goes. It's a very freewheeling conversation. And when I came up with this idea and reached out to my podcast friend, I will call her, but mother in life, I ideated and brainstormed with her and said that who we should invite, we want to just have some good engineering conversation. So she was very kind enough to say, "तुम तो engineer हो." It's very easy for me to play the role of a host and and just point a mic towards someone and say, "आपको क्या लगता है?" But when the mic gets tilted towards me, then the pressure and the heat, the hot seat, as Amitabh Bachchan says, comes, right. So I slowly went in the corner and went a bit away from the hot seat, and I said, "कि आपका क्या suggestion है?" So then he suggested a name. I also reached out to a couple of people. So, we have the honor of a very esteemed special guest, but I will let my mother, who is also in this podcast, and you will be listening her voice next, to introduce him, and will also request him to introduce himself. You folks know me as well. मैं अब हिंदी भाषा में स्विच करना चाहूँगा. जो लोग अंग्रेज़ी में सुन रहे हैं वो मेरे अनुवाद को AI के सबटेक्स्ट के थ्रू अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर सकते हैं. ये स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, साउंड क्लाउड एंड यूट्यूब, इस चारों में उपलब्ध रहते हैं, तो जिसके कारण आपको भाषा की समस्या नहीं आएगी. अच्छा, इसके अलावा मेरे जो तमिल, मलयाली, कन्नड़, बांग्ला
और पंजाबी या उड़िया लिसनर्स हैं वो भी गूगल के भाषा के ट्रांसलेट मैकेनिज्म, लाइव ट्रांसलेट मैकेनिज्म के थ्रू मेरी ये पॉडकास्ट को समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी एक सबटाइटल फाइल भी बना दूँ और आपको उपलब्ध कर दूँ। प्लीज़ अपने कमेंट्स छोड़िए। तो इस थोड़े से हाउसकीपिंग अनाउंसमेंट के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा। मुझे मालूम है मेरे 2 एस्टीम गेस्ट थोड़े से व्याकुल हो रहे होंगे कि इतना लंबा इंट्रोडक्शन, बट मैं चाहूँगा इनवाइट करना इंदुबाला सिंह जी को, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 1000 से ज़्यादा कविताएं लिख चुकी हैं, एक बहुत ही मॉडर्न प्लेटफॉर्म पे बहुत प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य जगत में उनका एक काफ़ी अच्छा हस्तक्षेप है। वैसे वो अपने बारे में ऐसा बोलेंगे नहीं, वो शिक्षाविद रह चुकी हैं, लगभग 2 या 3 दशक लंबा उनका कैरियर रहा है। काफ़ी उन्होंने जीवन में काफ़ी उन्हें उतार चढ़ाव देखे हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ उनको साझा किया है हमसे अपने कविताओं या पद्य और गद्य दोनों के द्वारा। बट ओवर टू इंदू जी या इंदुबाला जी या मम्मी, जैसा भी आप चाहें, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। और हमारे जो एक एस्टीम गेस्ट भी दिख रहे हैं स्क्रीन में, क्योंकि जो ऑडियो पॉडकास्ट वाले लिसनर्स हैं उन्हें दिखेगा नहीं, तो जो स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। मैं शिक्षिका रही हूँ और स्कूल डेज से मुझे कविता लिखना पसंद था और लिखती रही, ऐसे ही लिखती रही कॉपी में, कागज में। और उसके बाद गुम गई कविताएं, रचनाएं गुम गई। तो फेसबुक जब माध्यम हुआ तो मैं फेसबुक पेज में लिख के मैं डाल देती हूँ। अब अनूप शुक्ल जी से मैं मिली फेसबुक के माध्यम से ही, और चूंकि वो एक ब्लॉग लिखते हैं, अब लिखते थे, ब्लॉग भी पढ़ती थी, लेकिन अब फेसबुक ज़्यादा कन्वीनियंट है तो फेसबुक में ही मैं पढ़ती हूँ। उनका प्राय संस्मरण ही बहुत अच्छा लिखते हैं और पेशे से वो इंजीनियर हैं ही। तो मैं चूंकि कविता, कहानी, लेख वगैरह सब चीज़ में बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैं उनसे इस तरह से मैं उनके लेखन जगत से आकर्षित हुई। उसके बाद धीरे धीरे मालूम हुआ कि इंजीनियर है। ठीक है, तो उसके बाद बस, तो आज इंजीनियर डे के दिन मैंने बेटे को एडवाइस दिया कि उनको बुलाओ, अनूप शुक्ल जी को बुलाओ, उनका इंटरव्यू लो तो बहुत अच्छा रहेगा। वो खुद भी इंजीनियर हैं, रिटायर भी अभी हुए हैं, बहुत ऊंचे पद में हैं और बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। इस तरीके से उनसे मेरा लेखन जगत से ही परिचय हुआ है, और इंजीनियर तो पीछे परिचय पता लगा मुझे। तो अब मैं चाहूंगी कि अनूप शुक्ल जी अपना परिचय दें। और वो मुझे कुछ भी नहीं समझते होंगे, लेकिन मैं उनको एज ए ब्लॉगर और ऐसे संस्मरण लिखने के लिए पहचानती हूँ। धन्यवाद इंदुबाला जी, और धन्यवाद नवल जी। हालांकि हम लोग फेसबुक के माध्यम से, मैं और इंदुबाला जी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, और वो अपनी लगभग मेरी हर पोस्ट पर उनकी टिप्पणी आती है और वो मेरा उत्साहवर्धन करती रही हैं। और ये कहना, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मैं उनको कुछ नहीं समझता। और वो हमारी शुद्धि पाठिका रही हैं, मैं भी उनकी लेख कविताएं पढ़ता रहता हूँ, और उनकी राय हमारे लिए हमेशा मूल्यवान रहती है, और वो कमेंट करती रही हैं। और ये हमारा फेसबुक का परिचय रहा हो तो, लेकिन आज पॉडकास्टिंग के माध्यम से पहली बार उनसे बातचीत हो रही है और उनके माध्यम से नवल से बात हो रही है। ये मेरे लिए बड़े खुशी का मौका है, और मैं धन्यवाद अदा करता हूँ नवल जी का और इंदु जी का कि इंजीनियर्स डे के अवसर पर मुझसे बातचीत करने के लिए मुझे आमंत्रित किया और अपनी बातें रखने का मुझे मौका दिया। मैं अपने बारे में जहाँ अगर बताना चाहूँगा तो संक्षेप में यही है कि मैं कानपुर, मूलतः मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। कानपुर उत्तर प्रदेश का मुख्य औद्योगिक शहर है। इसको कभी यहाँ पर चलने वाली मिलों और दूसरे संस्थानों के कारण इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। कानपुर का देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, और आज भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहर है। जैसे कि कलकत्ता बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए है, वैसे ही उत्तर प्रदेश
के लिए कानपुर है। तो उत्तर प्रदेश में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। 1 से 5 तक मैं एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा अपने घर के पास। इसके बाद 6 से 10 तक मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ा और 11वीं 12वीं मैंने बीएनएसडी इंटर कॉलेज से पढ़ाई की। और बीएनएसडी इंटर कॉलेज में पढ़ते हुए 12वीं में मेरी उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट में नाम भी था। उसके बाद मैं इलाहाबाद गया। मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने 1981 से 85 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। उसके बाद मैं बीएचयू आईटी में, जो कि अब बीएचयू आईआईटी हो गया है, मैंने वहाँ से एमटेक किया मशीन डिजाइन में। और एमटेक करने के बाद मैंने 1 साल यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सर्विस की और उसके बाद इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू, आईईएस के थ्रू, मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज मैंने ज्वाइन की। 1987 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, इसलिए बैच हम लोगों का 87 बैच कहलाता है। और मैं 30 मार्च 88 को मैंने ज्वाइन किया ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में विभिन्न स्थानों पर सर्विस करते हुए मैं पिछली 30 अप्रैल 2024 को मैं रिटायर हुआ हूँ। इस दौरान मैंने कानपुर, बलंगीर, उड़ीसा में बलंगीर, शाहजहाँपुर, जबलपुर और फिर कानपुर, इन जगहों पर मैंने सर्विस की विभिन्न पदों पर। और विभिन्न पदों पर काम करते हुए मैं कानपुर के फील्ड यूनिट से मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुआ हूँ। ये मेरा अभी तक का कामकाज का अनुभव रहा है। और सर्विस के अलावा मैं लिखने पढ़ने में मेरी रुचि थी, तो मैं 2004 से फुर्सतिया के नाम से एक ब्लॉग हिंदी में शुरू किया मैंने। उसका मेरे ब्लॉग का नाम फुर्सतिया था। और वो मैंने करीब 2004 से लेकर के 2010-11 तक ब्लॉगिंग फुर्सतिया ब्लॉग में ही लिखता रहा। इसके बाद फेसबुक का चलन शुरू हुआ तो मैं फेसबुक में आ गया। हालांकि हमारे साथी लोग हम लोगों को ब्लॉगर के रूप से ही जानते हैं और तब से मैं लिख रहा हूँ। शुरुआत में मैंने तमाम सारे लेख लिखे, व्यंग्य लेख लिखे, हास्य व्यंग्य लेख लिखे और सारे लिखे। और मैं आजकल वृत्तांत लेखन में मेरी रुचि है। लोगों से मिलना जुलना, घूमना और घुमक्कड़ी करते हुए लोगों के बारे में लिखना, ये मेरा रुचि का विषय है और मैं उसको करता हूँ। उसी के माध्यम से चरित्रों के बारे में भी लोगों को मैं लिखता हूँ और लोग उसको पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा लिखता हूँ। और उसी भ्रम में मैं लिखता रहता हूँ। ये मेरी लेखन यात्रा करीब लगभग 20 साल की हो गई है और उसके माध्यम से ही मेरी 7 अभी तक किताबें आ चुकी हैं। उन 7 किताबों में से 2 किताबों पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सम्मान भी मिल चुका है। एक किताब मेरी सूरज की मिस्ड कॉल पर सम्मान मिला था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से। वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के नाम पर पुरस्कार था, वो मिला था। और दूसरी मेरी वृत्तांत लेखन की किताब थी घुमक्कड़ी की दिहाड़ी, उस पर भी मुझे हिंदी साहित्य संस्थान से, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से इनाम मिला है। और अभी बाकी जो मेरी कुछ किताबें जो प्रकाशनाधीन है, उनमें मेरी एक यात्राओं पर ही पुस्तक है। एक है उसका नामकरण बहुत पहले हो चुका है। किताब का नाम है कनपुरिया कोलंबस और वो आने वाली है और कब आती है उसका इंतजार है मुझे। ये मेरी संक्षिप्त में जीवनी है। मेरे घर परिवार में मेरी पत्नी है, जो कि वो भी शिक्षा विभाग से अधिकारी के पद से रिटायर हुई हैं। और मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा इंजीनियरिंग करने के बाद, एमएस करने के बाद वो कैलिफोर्निया में माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है। और दूसरा बेटा उसने इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ दिन नौकरी गोल्डमैन सैक्स में, अमेरिका में गोल्डमैन सैक्स में बेंगलोर में सर्विस की उसने। और आजकल वो अपना खुद का बिजनेस चलाता है। उसके जो बिजनेस ट्रिप है, उसका बिजनेस ग्रुप है, उसका नाम फिरगुन ट्रेवल्स है। और संयोग से आज दोनों बच्चे, एक बच्चा मेरा अमेरिका से, बड़ा वाला बेटा आज रोम में घूम रहा है और छोटा वाला बेटा मेरा जो है उसमें छोटा वाला बेटा भी बाहर घूमने के लिए गया हुआ है। और ये मेरे परिवार का परिचय है और यही इतना कुछ कहना है।
वो बहुत ही रोचक परिचय है। और सबसे अच्छा तो आई थिंक ये पॉडकास्ट में पहले बार शायद लोगों को पता चलेगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस कानपुरिया कोलंबस कैसे बना। इसका जवाब सब उसका जानना चाहेंगे। उसका कारण, उसका उसका रीजन ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मित्र आलोक पुराणिक हैं, वो लगभग हमारी सभी किताबों के नाम वही रखते हैं। तो किताबों के नाम उनके जो रखते हैं उनको मैं हम लोग के नाम पुरोहित के नाम से हम लोग कहते हैं। वो बहुत बड़े प्रख्यात लेखक हैं आलोक पुराणिक। हिंदी के व्यंग्य की जगत में वो बहुत अच्छा जाना पहचाना नाम है। उनके ऊपर मैंने एक किताब भी लिखी थी, उसका नाम है आलोक पुराणिक व्यंग का एटीएम। तो जब मैं यूएसए गया था, तो यूएसए 2019 में गया था, तो वहाँ के मैं विवरण लिख रहा था, तो उसके पचासों सैकड़ों लोग कमेंट करते थे और बताते थे कि आपके विवरण बहुत रोचक हैं और इसके बारे में किताब आनी चाहिए। तो मैंने यूएसए से ही फ़ोन करके आलोक पुराणिक से पूछा कि अगर मैं किताब लिखूं तो इसका नामकरण क्या किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप इसका नाम, तुरंत बोला उन्होंने कि इसका नाम आप रखिए कनपुरिया कोलंबस। तो कनपुरिया कोलंबस नाम तय हो गया किताब का, मसाला भी तय है, बस किताब छपनी बाकी है। तो ये उसके विवरण मैंने सोचा आपको बताया जाए, नाम के पीछे जो कारण जो है। और ये कब तक आ जाएगी? नहीं, किताब बस वही किताब मतलब लग के मतलब छपानी किताब एकदम तैयार है। जब भी बैठ जाते हैं तो हो जाती है। असल में कुछ काम में हम लोग जो है कुछ काम झटके में करते हैं। जैसे आलोक पुराणिक के बारे में जो आलोक पुराणिक व्यंग का एटीएम, उनके बारे में किताब जो हम लोगों ने तैयार की है, वो करीब 300 पेज की किताब है। उसमें आलोक पुराणिक के बारे में लोगों के संस्मरण हैं, आलोक पुराणिक के इंटरव्यू हैं, आलोक पुराणिक के लेख हैं और उनके बारे में तमाम चीज़ें हैं। और वो किताब केवल 15-20 दिनों में तैयार हुई थी। और क्या बात है। 15-20, हाँ, और ये वाली किताब भी तैयार हो गई है, लेकिन फाइनल करना है, चूंकि जो काम हो चुका है इसलिए उसको पूरा करने में आलस वाली बात आती है। तो यही सब बात है। कभी भी छूट हाँ, जाएंगे, एक हफ्ते में किताब फाइनल हो जाएगी और बढ़िया। आ जानी चाहिए। हाँ, और किंडल में आ जाए तो फटाफट मतलब वही मतलब डिलीवरी का समय भी नहीं लगता, फटाफट पढ़ सकते हैं किंडल या फिर किंडल में मेरी दो किताबें हैं, एक सूरज की मिस्ड कॉल है, एक आलोक पुराणिक व्यंग का एटीएम है, और एक तीसरी और भी किताब है, पुलिया पर दुनिया। पहली किताब मैंने पुलिया पर दुनिया ही लिखी थी, जो कि जबलपुर में जब काम करता था तो एक पुलिया पर लोग बैठे हुए मिलते थे, उनसे बातचीत के माध्यम से जो पोस्ट बनती थी उसको कंपाइल करके मैंने वो किताब बनाई थी। तो वो तीनों किंडल में है, लेकिन वो फॉर्मेट कुछ बहुत अच्छा नहीं है, तो बार बार मुझे किंडल से मैसेज आते हैं कि इसको आप ठीक करिए, इसको ठीक करिए। तो उसको भी काम करना बाकी है अभी। जी। तो अभी आप अपने पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी है, मुझे लगता है कि आप इक्वली बिजी हैं जितने से आप प्री रिटायरमेंट लाइफ में थे। आपने आपके पास यू हैव एनफ ऑन योर प्लेट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, काफ़ी सारा काम आपके पास रेडीमेड है। और मैं दर्शकों के लिए या सुनने वाले पॉडकास्ट लिसनर्स के लिए ये लिंक्स या तो बॉडी में डाल दूंगा या सर से लेने के बाद मैं एक फर्स्ट कमेंट में, पिन कमेंट में डाल दूंगा। जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं और अपनी राय भी साझा कर सकते हैं। और फुर्सतिया ब्लॉग का भी मैं लिंक डाल दूंगा ताकि लोग ज़रूर जाएं, एक बार ज़रूर देखें। और आप नियमित फुर्सतिया पे पोस्ट करते हैं या नियमित फेसबुक पे पोस्ट करते हैं? नहीं, फुर्सतिया पर एक्चुअली फुर्सतिया पर हम लोग 2010-11 तक केवल फुर्सतिया पर ही लिखता था। बाद में अच्छा। जब फेसबुक पर मैंने आ गया, तो मैं फेसबुक पर ही लिखता हूँ, लेकिन फेसबुक की पोस्टें मैं ब्लॉग पे डाल देता हूँ। तो अच्छा। अभी पिछले करीब 3 सालों की नहीं पढ़ी है, लेकिन 2021 तक की किताब मेरी जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी मैंने अपने ब्लॉग में डाल दी हैं, ताकि वो फेसबुक पे के मुकाबले में ब्लॉग में सर्च करना और खोजना आसान लगता है, और हाँ। वो एक सेफ रहता है। इसलिए मैंने उसको फुर्सतिया पर ही डाल दिया है। ये जो 3 साल की पोस्टें हैं उनको भी मुझे डालने का प्लान है, और मैं आशा करता हूँ जल्दी ही डाल दूंगा उसको। जी, बिल्कुल। तो आई थिंक इनर पार्क भी एक ब्लॉग है, मम्मी आपका इन इन द पार्क ब्लॉग है शायद, या एक चौथाई आकाश जो आपका फेसबुक का पेज है।
वो पेज तो बहुत सारा है, लघु कहानियां, लघु कविताएं, लघु लेख ऐसे कर करके इन नेपाल तो ऐसे ग्रुप है अच्छा, ठीक है। पेज। ठीक है, तो मैं उनका भी लिंक डाल दूंगा, जिनको अधिकतर मेरे श्रोता उनको उनको पहले से पता है, क्योंकि ये वहीं उसी ग्रुप में पोस्ट होता है ये एपिसोड सारे। बट फिर भी जो लोग स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं या एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं, उनके भी लिंक्स मैं डाल दूंगा साथ में। तो अभी हम आते हैं हमारे जिनके लिए हम कल मना रहे हैं, जैसे कि जो हमारे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी, या फिर जो इंजीनियर्स जर्नी। तो एक इंजीनियर की जर्नी भारत में ऑफ कोर्स 1991-92 के बाद जब IT रिवॉल्यूशन आया तो काफ़ी इंजीनियर्स की भीड़ लग गई एक पर्टिकुलर ब्रांच की तरफ। बट इंजीनियरिंग हमेशा से रही है, हज़ारों सालों से। चाहे वो अगर आप इजिप्ट के पिरामिड देखें, वहाँ पे इंजीनियरिंग है, भारी सामान को मूव करना है, हाइडल पावर है, बांध है, जलप्रपात है। तो इंजीनियरिंग पहले से रही है, कंप्यूटर साइंस एक नया इंजीनियरिंग है। तो हम कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पे भी बात करेंगे इंजीनियरिंग की, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, या फिर जानिब शुक्ल जी की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में है, तो उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम अर्ली जर्नी से शुरुआत करें तो अगर हम ये जाने कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। 1980 अगर हम के आसपास जाएं तो कोई ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर या आपके कोई रोल मॉडल जिसको आप लुकअप करते हो? इंजीनियरिंग में जाने का तो संयोग था। असल में इंटरमीडिएट तक हम लोगों को, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, हमारे परिवार को आगे क्या करना है बहुत अच्छी तरह पता नहीं था। तो जब हम लोग इंजीनियरिंग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, तो जब एग्ज़ाम देने के कुछ ही दिन पहले पता लगा कि ये भी एक माध्यम है आगे बढ़ने का, इंजीनियरिंग से भी जा सकते हैं। तो हम लोगों इंजीनियरिंग के लिए मैंने एग्ज़ाम दिए थे। तो इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम देने के दौरान ही, मतलब इंटरमीडिएट के दौरान ही जब एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया इसमें मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया था, नेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो था। और क्योंकि इलाहाबाद हमारे घर से 200 किलोमीटर दूर था और कॉलेज बहुत अच्छा, हालांकि जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की जो अवधारणा है, जो कांग्रेस जमाने में पंडित नेहरू जी की थी, वो अद्भुत अवधारणा थी कि जिसमें 50% हर क्षेत्र में इंजीनियरिंग, हर स्टेट में इंजीनियरिंग कॉलेज था, और सिर्फ 50% जो छात्र होते थे उस स्टेट के होते थे, और बाकी जो छात्र थे वो दूसरे स्टेट से आते थे। तो एक तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज में मिनी इंडिया के दर्शन हो जाते थे, हर क्षेत्र के लोग मिल जाते थे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में इलाहाबाद में मैंने एडमिशन हो गया, वहाँ मैंने पढ़ाई की। और 4 साल के दौरान चूँकि देश के हर क्षेत्र से, हर स्टेट से लोग वहाँ पर आते थे, तो हर क्षेत्र के देशों के, हर स्टेट के लोगों से मेरा परिचय भी हुआ और एक तरह से मिनी इंडिया के दर्शन भी हुए। और ये मेरे लिए अद्भुत अनुभव रहा। और वहाँ पर जब कॉलेज इंजीनियरिंग के बाद एडमिशन हो गया, रैंक आ गई, तो मुझे कोई भी ब्रांच मिल सकती थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने का मुझे मैकेनिकल का इंजीनियरिंग की कोई खासियत या कोई बुराई नहीं पता थी, लेकिन उस समय मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रोफेसर थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, उनके देश दूर दूर तक नाम था, तो उनका नाम दूर दूर तक था, इसलिए वो मैकेनिकल। अगर आप नाम बोल सकें या याद हो तो एक मुझे नाम जो है, एक प्रोफेसर जगदीश लाल का नाम याद आता है, जो कि हाइड्रोलिक्स की किताबों, मतलब कि जाने माने लेखक थे। और एक BK गुप्ता जी थे, वो उसके स्ट्रेंथ, मतलब मशीन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बड़े अच्छे माने जाते थे। 2 नाम मुझे याद हैं। एक आर यादव जी थे, वो अपने उसमें हीट इंजीनियरिंग में उनका नाम था। और सिविल इंजीनियरिंग के भी कुछ टीचर्स थे, उनके नाम मुझे नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन वो कॉलेज उस समय उत्तर प्रदेश के प्रख्यात लोगों का, टीचर्स के कारण प्रख्यात था। इसलिए मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने ले लिया और 4 साल के बाद मैं इंजीनियर बन के निकल आया। तो आपको, जैसा आपने बताया कि आपका ट्रेडिशनल बैकग्राउंड इंजीनियरिंग में नहीं था, तो जैसे कि अंग्रेजी में एक शब्द है बुल इन अ चाइना शॉप, जो कि एक अचानक से कोई कहीं पहुंच जाए, उसको लगे कि अब मैं क्या कहाँ आ गया मैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा, असमंजस की स्थिति हुई, या लगा कि ये मुझे शायद
थोड़ा आपको आप बदलाव लाने पड़ेंगे, अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा कभी लगा या आप यू टुक नहीं फिश नहीं, टू वाटर, ऐसा इट वाज ऐसा नेचुरल कभी नहीं फॉर लगा, यू? ऐसा कभी नहीं लगा। असल में कि क्या है कि जिस जो मैंने बताया कि हम लोग इंटरमीडिएट में थे तो पढ़ने लिखने में बहुत इंटेलिजेंट भले ना हो लेकिन मेहनती बच्चे थे हम लोग। और जी, जी, जी। यूपी बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो बहुत टफ सिलेबस होता है। तो जी, बच्चे जो पढ़ लिख के जाते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना और पढ़ना लिखना सब उतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। टीचर्स अच्छा। से दूसरी बात क्या है कि आज की तरह वहाँ पढ़ाई कठिन नहीं पढ़ाई थी। आज के समय में तो सेमेस्टर में एग्जाम और तमाम सारी चीजें होती हैं। उस समय तो साल में एक बार एग्जाम होता था। तो बच्चे लोग मस्ती करते थे, पढ़ते भी थे, मस्ती भी करते थे, कॉलेज में घूमते घामते थे, तमाम दूसरी चीजें सीखते थे। और उसके बाद जनवरी फरवरी से सीरियसली एग्जाम देते थे, पढ़ाई करते थे और वो आगे अपने 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 मनचाही फील्ड में चले जाते थे। अधिकतर लोग सरकारी सर्विसेज में चले जाते थे। तो ऐसा कोई आउट ऑफ प्लेस जैसी कोई बात कभी समझ में नहीं आई, कभी नहीं जी, लगी। बल्कि कॉलेज में भी मैं अच्छे नंबरों से पास होता था और जी, अच्छे अच्छे स्टूडेंट में माना जाता था। बल्कि जी। कॉलेज में हमारे दोस्त लोग हमसे कभी कभी आपस में बातचीत करते थे कि ये दिन भर तो मस्ती करता रहता था, पढ़ता कब है? और पढ़ता कब है तो उसके नंबर कैसे ऐसे आते हैं, ये हमारे दोस्तों ने बताया, मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोचता। ये तो आपकी ह्यूमिलिटी है। ऐसा कभी नहीं हाँ, फील हुआ कि कहीं आउट ऑफ प्लेस हो या कुछ पढ़ाई कठिन लगी जी, हो या कुछ जी, समस्या हुई हो। जी। क्योंकि मैं अगर एक उदाहरण दूँ तो मेरे घर में सब शिक्षा विद्या टीचर या प्रिंसिपल एजुकेशन ऑफिसर ऐसे बैकग्राउंड है। तो टीचर्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक रिस्पेक्टेबल नोबल प्रोफेशन है। मेरी दोनों बड़ी बहनें भी काफ़ी सीनियर टीचर हैं, पढ़ाती हैं और आईआईटी लेवल तक भी पढ़ाती हैं। बट टीचर्स में क्या होता है कि जैसे समर वेकेशन, दुर्गा पूजा वेकेशन, तो ये जो कल्चर है ये धीरे धीरे बॉडी के डीएनए में आ जाता है। तो जब मैं जब खुद मैंने देखा, जब मैं 4 साल तो निकल गए मेरे, मैं जैसा आप बता रहे हैं उतना तो नहीं, बट ठीक ठाक मार्क्स से 4 साल निकल गए। जब उसके बाद मैंने इंडियन ऑयल ज्वाइन किया तब लगा यार ये तो बहुत मेहनत का काम है, रात को 8-8 9 9 बजे तक काम कर रहे हैं। स्कूल में तो लोग 2-3 बजे घर चले जाते हैं। तो मैंने कभी ज़िंदगी में अपने आँख से देखा नहीं था। तो जब मैं पहली बार देखा तो मेरे को पहले पहले मुझे 1-2 महीना 3 महीना लगा चलो चलता है, हो गया ठीक है। बट जब थकान आनी शुरू हुई और काम हो रहा है, नाइट शिफ्ट हो रहा है और कल्चर काफ़ी अलग है इंजीनियर्स का और स्कूल टीचर का। टीचर काफ़ी मतलब काम किया, घर आ गए, कॉपी चेक किया, सुबह उठे फिर चले गए, लेसन प्लान बनाया। इंजीनियर्स लोगों को रात में इतनी ताकत रहती है, पार्टी करके फिर सुबह काम करके जाना है। उनको ज़्यादा सोचना उतना जितना एक टीचर को सोचना पड़ता है कि क्या पढ़ाऊंगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन करना, नोट्स बनाना, उतना शायद नहीं करना पड़ता। आप सुबह उठ के टी शर्ट जींस पहन के पहुंच जाओ ऑफिस। ऑफकोर्स अभी काफ़ी काम करना पड़ता है। तो ये जो बदलाव था ये मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाला था, फिर मैंने अपने को ढाला। तो यही मैं जानने की कोशिश थी कि जब आपने बदलाव किया फिर आपने एमटेक भी किया, तो आपको क्या मशीन से प्यार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्यार हो गया था आपको? मशीन डिज़ाइन में शायद आपने एमटेक किया, तो क्या उसकी थोड़ी जर्नी भी बताइए और हाँ ये नहीं, भी बताइए। पहले तो जो अभी बात मस्ती वाली बात मतलब टाइम और दुर्गा पूजा छुट्टियों वाली बात बताई। तो मतलब अभी कॉलेजेस में ये हो गया है कि एग्जाम देने के लिए 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। तो बच्चे के लिए पढ़ना मेरे ख्याल से बहुत बच्चे जिम्मेदारी से पढ़ते हैं और उनके लिए मुश्किल भी हो गया है। लेकिन हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोगों के लिए ज़िंदगी मौज मस्ती और बहुत आसान ज़िंदगी थी। छुट्टियां जो हम लोग छुट्टियां कुछ दिन होती थी, बाकी छुट्टी हम लोग अपने मन से तय करके ले लेते थे। जब कोई कॉलेज में नहीं आएगा तो पढ़ाई कैसे होगी? टीचर लोग भी वहीं के पढ़े लिखे होते थे, तो टीचर लोग भी हम लोग को जानते थे। दिवाली की छुट्टियां और दशहरे की मिला के छुट्टियां कर लेते थे। साउथ इंडिया के दोस्त भी अपने घर चले जाते थे, उड़ीसा के लोग अपने घर चले जाते थे। छुट्टियों का हाल मैं आपको बताऊं कि जब मैं थर्ड ईयर में वहाँ कॉलेज में पढ़ता था, सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में गया, तो हम लोगों को ऐसे ही मन किया कि हम लोग साइकिल से भारत यात्रा करेंगे छुट्टियों में। तो एग्जाम के बाद 30 जून को एग्जाम खत्म हुए, 1 जुलाई को हम लोग साइकिल यात्रा पर चले गए। और 1 जुलाई को मतलब इलाहाबाद से बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी पहुंचे 1.5 महीने में, और 1.5 महीने में दूसरे कोर्स से वापस आए। 3 महीने में हम लोग कॉलेज गोल करते, मतलब कॉलेज से बाहर रहे। लौटने के एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद दिवाली और उसकी छुट्टियां हो गई, दिवाली दशहरे की छुट्टियां हो गई। इसके बाद एक वहां पर छात्र की डेथ हो गई, तो करीब 1 डेढ़ महीना कॉलेज साइंडाई भी रहा। इसके बाद होली की छुट्टियां भी हुई, तो कॉलेज उस साल मैंने कुल मिला के बमुश्किल 1 महीने क्लास किया होगा। और फिर भी हमारे जो नंबर आए बहुत अच्छे नंबर आए, और हम लोग अच्छे नंबरों से पास हो गए। तो वो पूरी मस्ती का माहौल हम लोगों ने जिया है। तो टीचर्स तो कम से कम दिखाने के लिए तो क्लास में आना पड़ता था, लेकिन हम लोग से ऐसी कोई बंदिश नहीं। और जहाँ तक मशीन डिजाइन वाली बात वो हुई, तो असल में क्या हुआ कि उस समय हम लोग जब एग्जाम के लिए एमटेक के लिए गेट एग्जाम शुरू हो गया था, जी गेट शुरू हो गया था। तो हम लोगों को जो मार्क्स मिले थे उसके हिसाब से मशीन डिजाइन हम लोगों को मशीन डिजाइन मतलब ब्रांच मिली थी। कोई लगाव जैसी कोई बात नहीं थी, एक वो जो मजबूरी वाली बात है, यहाँ मजबूरी वाली बात थी, वही ब्रांच मिली, हम लोगों ने उसी में पढ़ाई की, एमटेक किया। और एमटेक करने के बाद फिर सर्विसेज में आ गए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज में। वहाँ पर भी हमारे जो गुरुजी थे, जिनका एक का नाम मुझे याद है, दो गुरुजी के मुझे नाम याद है। एक बी किशोर जी, प्रोफेसर बी किशोर थे, वो बहुत नामी टीचर थे। और एक प्रोफेसर पीसी उपाध्याय जी, वो हमारे जी गुरुजी के भी गुरुजी थे। वो लोग अद्भुत टीचर थे। उनसे हम लोग जो है कुछ दिन हम लोग उनके साथ काफी दिन साथ रहे, और उनको देखते हुए हमारा कॉलेज टीचिंग का भी मन था कि कॉलेज में रहेंगे, टीचिंग करेंगे। लेकिन संयोग कुछ ऐसा हुआ कि इधर आ गए, और नौकरी में करते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सर्विस में आ गए। तो जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में भी काफ़ी लोगों को शायद जिज्ञासा हो या जानने की इच्छा हो कि क्या होता है, कैसे काम होता है, तो उसको अगर आप हमें थोड़ा सा समझाएं। देखिए, और और- कुछ की प्रोजेक्ट्स है, चैलेंजेस है, कोई टिडबिट्स ऐसा जो आपको कुछ साझा करें हमारे साथ। हाँ। देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो थी, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, आज़ादी के बाद और उसके बाद लगातार जो है, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनकी जो हथियारों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो थी, मैंने सरकार की इकाई थी, तो वहाँ पर मोस्टली आर्मी की सामान हमारे यहाँ बनते थे, 90% करीब आर्मी के। तो आर्मी के हथियार, गोला बारूद, तोप, राइफल और रॉकेट, और ये से लेकर के कपड़े के सामान, पैराशूट, और ये सारी चीज़ें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दुनिया के सबसे पुराने ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, जिसकी हालांकि पहले उनकी स्थापना फैक्ट्रियां पहले ही चल रही थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1802 में पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज गन एंड सेल फैक्ट्री काशीपुर कलकत्ता में जो है वो बनी थी। और इसके बाद दुनिया के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज दुनिया का ऐसा अकेला इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें कि इतने वैरायटी ऑफ आइटम्स बनते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में पुरानी से पुरानी टेक्नोलॉजी और दुनिया की नई से नई टेक्नोलॉजी दोनों उपलब्ध हैं, और वेरीड और बहुत लंबा इतिहास रहा है। वर्कफोर्स इसकी बहुत कुशल वर्कफोर्स रही है, और हर तरह की चीज़ें ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में आर्मी की रिक्वायरमेंट की बनती रही हैं। जब ज़रूरत पड़ी आर्मी के लिए हम लोगों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने बनाए। और विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि आपके देश के डेवलपमेंट में भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो हमारी अग्नि मिसाइल, पिनाका रॉकेट, पृथ्वी मिसाइल वगैरह जी, बनी है, ये तो इनके भी मतलब पार्ट हम लोग। जी, बिकॉज हाँ, सॉरी मैं आपको रोक रहा हाँ, हूँ कि इसके हाँ, लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसके लिए लेजेंड है, मतलब हाँ, उनकी किताब है अग्निपंख। मैं हाँ, ऑफ कोर्स मैं अग्नि एक की छोटा उड़ान, सा हाँ, अग्नि की उड़ान, अग्नि हाँ, की उड़ान एंड इग्नाइटेड विंग्स ऑफ माइंड, फायर, या विंग्स ऑफ विंग्स ऑफ फायर फायर, एंड
बस ये बोलना चाहूँगा कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ, इस बीच में सर को रोक रहा हूँ कि कलाम साहब की बात आ गई है। तो एक समय था जब मैं, कलाम साहब और इंदु जी एक ही हॉल में थे। वो समय था मेरे कन्वोकेशन का। कलाम साहब काफ़ी रोल मॉडल रहे हैं। वो उनकी एक अच्छी बात, एक बहुत ही जो बहुत ही रिमार्केबल बात थी कि वो हर कॉलेज के कन्वोकेशन में पहुंच जाते थे। तो भले ही कोई बहुत हाई फाई कॉलेज ना हो, कोई छोटा प्राइवेट कॉलेज उनको बुलाए तो फटाक से चले जाते थे। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे कलाम साहब कन्वोकेशन में आए और वो हमेशा एक स्पीच दिलवाते थे कि आई विल डू दिस, ये फैमिली में हैप्पीनेस से देश का विकास होता है, विजन 2020। वो जो कोरोना हो गया तो अलग बात है 2020 में, बट उनका विजन 2020 कितना हमें हमसे प्रण दिलवाते थे, सबको खड़ा करवाते थे। तो क्योंकि अग्नि की बात हुई तो अग्नि मिसाइल या पृथ्वी मिसाइल मैन के बिना उनका आई थिंक विवरण अधूरा रह जाता। इसलिए मैंने थोड़ा डॉक्टर कलाम साहब को बीच में बोलने, अगर आपके भी कोई रोचक ऐसे अनुभव हैं, कोई ऐसे लेजेंडरी, तो जरूर साझा कीजिए हमारे नहीं तो वही लिसनर्स के साथ। लेजेंडरी जी हमारे हमारे मतलब व्यक्तिगत रूप से हमारे नहीं, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का अनुभव रहे हैं कि देश के, जैसे जब जीसीएफ में हमारी गन एंड सेल फैक्ट्री, ये जीसीएफ जबलपुर में नेहरू जी आए थे उसका, वहाँ पे फैक्ट्री का उद्घाटन करने। इंदिरा गांधी जी आई थी जबलपुर की फैक्ट्री का उद्घाटन करने। यह तमाम सारी, ये जो इंदिरा जी ने जो आखिरी स्पीच अपनी दी थी, जब वो उड़ीसा में आखिरी स्पीच दी थी, तो वो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो वहाँ की है, बालासोर में जो बलंगीर बलांगीर में में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहाँ पर का उद्घाटन करने के बाद ही उन्होंने स्पीच दी थी। तो इस तरह अच्छा के लोग, तमाम लोग जुड़े रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने देश की जब भी लड़ाई, खासतौर से लड़ाई के समय में जब भी जरूरत पड़ी है, तो जब देश की जरूरत के हिसाब से सामान उपलब्ध कराया गया है। और खासतौर से कारगिल के समय में जो हमारे तोप के गोलों की जरूरत पड़ी थी, तो हमारे यहाँ लोगों ने दिन रात काम करके उनकी आवश्यकता पूरी की। इसके बारे तो में इस थोड़ा लिहाज से बताइए ना, क्योंकि बैंक के बारे में लोग जानते हैं कि जब नोटबंदी हुई थी तो बैंकरों ने कितना मेहनत किया, या बैंकर कितनी मेहनत करते हैं। 1 रुपया कम हो जाता है तो पॉकेट से देना पड़ता है। तो जो दिखते हैं बैंकर सब लोग जानते हैं। अगर जितना आप पब्लिक डोमेन में साझा कर पाए कि कारगिल के समय कितनी मेहनत थी, क्या इंस्पिरेशन था, क्या मोटिवेशन था, क्या तो जो जज्बा भी, था। हाँ, तो कारगिल के समय में जो भी हथियारों की जरूरत पड़ी, तो हमारे लोगों ने देश के आर्मी की जरूरत के हिसाब से सामान बनाए। और खासतौर से अभी रिसेंट योगदान हम लोगों के, हमारे यहाँ से कोरोना के समय में हुआ है। कोरोना के समय में हम लोगों के पास देश में मास्क नहीं थे, पीपी किट नहीं थे, और जो खून के टेस्टिंग के लिए वो ब्लड फ्लूरेसेंट टेस्ट होते हैं, वो जो पीपी किट बनाने के लिए लिए जाते हैं, उसकी टेस्टिंग मशीनें नहीं थी। तो इंसिडेंटली मैंने, मेरा भी इसमें योगदान रहा है कि मैं जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शाहजहाँपुर में जनरल मैनेजर था, तो उस समय मास्क की जरूरत पड़ती थी और मास्क रिक्वायरमेंट बहुत थी। तो हम लोगों ने कभी बनाए नहीं थे, मास्क बनाने की टेक्निक भी नहीं पता थी। और उन दिनों में पूरे देश में आने आने की भी रोक लगी हुई थी, पूरा लॉकडाउन था। ऐसे समय में सामान भी नहीं था, तो लेकिन हम लोगों ने अपने प्रयासों से और सहयोग से तमाम जगह जाके सामान बनवाया, खरीदा, लिया वहाँ से, और मास्क बनाए, पीपी किट बनाए, सप्लाई की। हमारे जो कानपुर की फैक्ट्रियाँ हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर है, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर है, अमरनाथ फैक्ट्री है, उन लोगों ने जो ब्लड टेस्टिंग मशीन बनाए। हमारे फैक्ट्रियों ने उस समय जो ऑक्सीजन सिलेंडर के, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, तो फैक्ट्री के चेंज करके उसको ऑक्सीजन के प्लांट बनाए। इतने सारे योगदान दिए हमारे दूसरी केमिकल फैक्ट्री से, और जो सामान ज़रूरत पड़ती थी वो सामान बनाए, और पूरा मतलब कि बहुत बड़ा योगदान दिया। हालांकि अब तो कोई भी बना सकता है, लेकिन ऐसी ज़रूरत के समय में अपने प्रोडक्ट, वो जो सामान हम बनाते नहीं हैं, वो मतलब कि तुरंत मांग पे बना देना, वो हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, और उसके लिए बहुत सारा हम लोगों को अप्रिसिएशन भी मिला। और अब तो खैर हम लोग उस दौर से बाहर गुजर आए हैं। और लेकिन लगता है कि इस समय जरूरत पड़ रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की क्षमताएं अद्भुत हैं, हम लोगों की क्षमताएं अद्भुत हैं। जरूरत पड़ने पर ऐसा कोई काम नहीं हो सकता है, ऐसा कोई काम नहीं है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाले लोग कर नहीं सकते हैं। और समय समय पे हम लोगों ने बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सामान बनाए हैं जो कि दूसरी जगह
नहीं बने हैं। हमारे जी लोग अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का प्रोडक्ट रेंज इतना बड़ा है, हम लोग सुई बनाते हैं, डिबिया बनाते हैं और टैंकी बनाते हैं। आप देख लीजिए रेंज कितना बड़ा है। आज की डेट में अगर देखें कम से कम 20-25 हज़ार 30 हज़ार हम लोग आइटम बना चुके हैं। और जो आर्मी को जब भी जरूरत पड़ती है वो कहीं नहीं मिलता है, वो हमारे पास आते हैं। हम लोग कंबल बनाते हैं, दरी बनाते थे, मोजा बनाते थे, जर्सी बनाते थे। आर्मी को कोई जो भी जरूरत पड़ती है वो हम लोग काम करते हैं। जी, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जनता को, जैसे कि एक पिक्चर पेंट कर दिया जाता है कि सरकारी है, सरकारी मतलब कि इनएफिशिएंट है, कुछ नया नहीं सीख सकता। एक अंग्रेजी में टर्म है बीपीआर, बिज़नेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग। ये सब चीज़ें जैसे नेटफ्लिक्स या माइक्रोसॉफ्ट या सेल्सफोर्स या कोई ऐसी बड़ी-बड़ी मॉडर्न कंपनियाँ इसका इस्तेमाल करती हैं। कोई कहे कि हमने बीपीआर किया एक सरकारी संस्था में, बिज़नेस प्रोसेस को या काम करने की प्रणाली को बदलाव किया ताकि ज़रूरत की सामान दे पाएँ। तो ये सरकारी लचीलापन, जिसको एजिलिटी बोलते हैं, वो वहाँ पर भी है। तो लोगों को पता रहना चाहिए कि सरकार कर सकती है, सरकारी तंत्र सब कर सकता है और करता भी है, किया भी है उन्होंने। और असल दूसरी में बात, असल असल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ या जो बाकी सरकारी कंपनियों के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन जी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की क्षमताएँ असीमित हैं। और वहाँ पर जो दुनिया का ऐसा कोई मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं है जो कि जी, और सुधार वाले जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में इम्प्लीमेंट ना हुआ हो। सब हुआ है, बल्कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के जो ओरिजिनल प्रोसीजर्स थे वो अपने आप में इतने अच्छे प्रोसीजर थे। अगर उनको पालन पालन करते रहते तो उनका पालन करके तमाम चीज़ें बहुत सारे सुधार किए जा सकते हैं। हम लोगों का एक समस्या यही है, चूँकि हम लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तनख्वाहें हम लोगों की सरकार से मतलब कि जो मिनिमम वेजेस हैं, जो लोगों के पद के हिसाब से हैं, वो कम नहीं कर सकते हैं। तो उस मामले में जब चूँकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हो जाता है, क्योंकि तनख्वाहें ज़्यादा देती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लोगों का ख्याल रखना है, पेंशन है, वो चीज़ें प्राइवेट में नहीं होती हैं। हम लोगों ने जो जी। भी सामान बेचे वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे बेचे, कोई भी प्रॉफिट हम लोग नहीं लेते थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाले लोग जो है नहीं लेकिन लेते थे। बात ये है कि गुणवत्ता पे समझौता नहीं किया था। भारत में अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें बन सकती हैं, गुणवत्ता पे समझौता किए बिना। क्योंकि एक स्ट्रैटेजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। स्ट्रैटेजी में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। अगर मैं 1 मिनट में या लोगों से साझा करूं, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है कि या कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है कि मैं कोई चीज़ आपसे बेहतर कर सकता हूं। तो मान लीजिए कि इटाली में पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है, तो इटाली खाली पिज़्ज़ा ही बनाएगा। मान लीजिए इसराइल में वेपन्स बड़े अच्छे बनते हैं, तो इसराइल खाली वेपन्स ही बनाएगा। अब इटाली पे हमला हो गया तो इटाली थोड़ा ना बोलेगा कि भाई ये लो पिज़्ज़ा ले लो, हमें वेपन्स दे दो, हमें अपना बचाव करना है। सामने वाले को पिज़्ज़ा नहीं चाहिए, तो इटाली को भी वेपन्स अपने लिए बनाने पड़ेंगे। भले ही उसको वेपन्स बनाने में खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो उसका वो उस काम में एक्सपर्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन द सेम वे कि यहाँ पे अगर जैसा आप बता रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी भारत को, जब पूरी दुनिया ने प्रतिबंध लगा दिए या हाथ खड़े कर दिए, तब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़े कॉस्ट के बावजूद भी कोई बनाने वाला है। भारत बाहर पे निर्भर नहीं है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंजीनियरिंग के बारे में इतनी बातें नहीं पता है। कोई इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं, कोई जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट बहुत है, सुई से लेकर तोप तक है। तो अगर मैं बोलूँ कि एस्पायरिंग प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट इंजीनियर कहाँ जाना चाहते हैं, वो बोलेंगे कि मैं IBM या माइक्रोसॉफ्ट या अमेजॉन या गूगल क्लाउड में जाना चाहता हूँ। उनको प्रोडक्ट मैनेजमेंट सरकार में भी होता है। मैं इंडियन ऑयल का एग्जांपल दूं तो अगर एक सिंथेटिक पेट्रोल बनाना या एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल बनाना भी एक प्रोडक्ट है। उसमें कैसे गुणवत्ता बढ़ाई, ऑक्टेन वैल्यू कैसे बदला गया, कैसे इंप्रूव किया गया ताकि इंजन पे डैमेज ना हो, तो वो भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। तो ज़रूर बताइए इसके बारे में थोड़ा, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन का मैं बताऊं, एक्चुअली क्या है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में हम लोगों के यहाँ डाइवर्सिफिकेशन की क्षमता अद्भुत है। अद्भुत इस जी, सेंस में आप ऐसा समझिए कि हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हजरतपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वो पहले आर्मी को मीट सप्लाई करती थी, मीट सप्लाइंग फैक्ट्री थी। बाद में मीट सप्लाई बंद करके उसी फैक्ट्री में कपड़े बनने लगे, पैराशूट बनने लगे। और आज उस फैक्ट्री में ड्रोन की सप्लाई हो रही है, उस फैक्ट्री ड्रोन की सप्लाई हो रही है। और इसी तरह हर फैक्ट्री में अपने प्रोडक्ट मिक्स जरूरत के हिसाब से चेंज हुए हैं। हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में पहले सेल का उत्पादन मैक्सिमम होता था, अभी सेल की रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो तोप पे बन गया। मतलब डाइवर्सिफिकेशन, चूंकि
इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम लोग डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम समय में कर सकते हैं। और अक्रॉस दी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हर तरह का एक्सपीरियंस है हमारे पास। हमारे यहाँ मेटलर्जिस्ट हैं, हमारे यहाँ केमिस्ट हैं, हमारे यहाँ इंजीनियर हैं, हमारे यहाँ सभी लोग हैं। और नीचे वर्कफोर्स भी इतना अच्छा है कि ज़रूरत पड़ने के हिसाब से, जैसे भी ज़रूरत पड़ती है वैसे हिसाब से हम लोग अपने प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करने में सफल रहे हैं। और इसीलिए 1802 में फैक्ट्री बनी, मतलब शुरुआत हुई थी, और आज ये 2024 है। और 222 साल हम लोग एग्जिस्ट कर सके, वो इसीलिए एग्जिस्ट कर सके। और अभी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम चल रहा है। अभी हालांकि 2 साल पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कारपोरेशन में कन्वर्ट हो गए हैं। एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, उसको 7 कारपोरेशन में बदल दिया गया है। लेकिन अपनी क्षमताओं के हिसाब से बदले परिवेश में भी वो लोग अद्भुत काम कर रहे हैं। और इसके बाद कारपोरेशन बनने के बाद हमारी जो कुछ खासतौर से कुछ फैक्ट्रियां हैं, कुछ ग्रुप हैं, उनको वो एक्सपोर्ट में भी बहुत आगे गए हैं। जो हमारे मुनिसन इंडिया है, हमारा जो एक्सप्लोजिव बनाते हैं, उनके पास अगले 3-4 साल का करोड़ों के एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं। ऐसे ही दूसरी AWEIL है यहाँ की, कानपुर की। और हमारे चेन्नई में हेडक्वार्टर है, AVENL का हेडक्वार्टर है। उनके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। तो हर तरह से हम लोग सक्षम हैं, लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। ये मतलब कि ये अफसोस की बात ये है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के बारे में लोग जानते कम है। और ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस में इवन जो पत्रकार भी होते हैं, ऑर्डिनेंस माने होता है कि तोप खाना, जो कि हम लोग हैं। और ऑर्डिनेंस माने होता है जो अध्यादेश, जो सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं। तो मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी ऑर्डिनेंस की जगह ऑर्डिनेंस लिखते हुए पाया है। तो जानकारी इसलिए भी कम है क्योंकि मतलब कि पिछले 10-15 सालों के पहले तक हम लोग काम में विश्वास करते थे, अपनी पब्लिसिटी में हम लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमें लगता है कि सेवा ही हम लोगों का कर्तव्य था। और हम लोग अपने काम के चलते हम लोग सेना का चौथा स्तंभ माने जाते थे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज सेना का चौथा स्तंभ मानी जाती थी। हम लोगों का लोगो था विनाशाय च दुष्कृताम। बहुत अच्छा। इसका मतलब भी समझा दीजिए हमारे जेन जी ऑडियंस के लिए, इसका मतलब भी थोड़ा समझा दीजिए। विनाशाय च दुष्कृताम मतलब दुष्ट लोगों के विनाशाय च दुष्कृताम मतलब दुष्टों का विनाश भी करना हमारा ध्येय है। तो ये था। और जो जहाँ तक क्वालिटी वाली बात हुई है, तो हमें मतलब मुझे हमारे लोगों ने बताया है, हमारी संबंधित लोगों ने, कि जो बफोर्स तोप जो हम लोगों ने स्वीडन से ये की थी, हम लोगों ने आयात की थी। तो हमारे यहाँ बफोर्स की तोपें जो मतलब तोपें बन के गई, तो उन लोगों ने लिया जो हम लोगों के यहाँ से, तो बताया कि हमारी तोपों की गुणवत्ता है वो उनसे किसी मामले में बेहतर है, उससे भी बेहतर है। ये गुणवत्ता के जहाँ तक ये है। और बाकी प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, फेल्योर तो होते रहते हैं, बिकॉज जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, माइक्रॉन्स में टॉलरेंसेस होते हैं। तो कभी कभी इधर हो गया, कभी उधर हो गया। वो हर प्रोडक्शन यूनिट्स का फिट्स एंड टॉलरेंस तो होते ही है, बिल्कुल होते हैं। क्योंकि भारत में अभी हाल सामयिक खबर ये है कि एप्पल ने टाटा के साथ एक करार किया है, और भारत में अब आईफोन 16 प्रो मैक्स जैसे मॉडर्न फ़ोन जो कि 3 नैनोमीटर पे काम करते हैं वो भी बन रहे हैं। तो ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि काफ़ी लोगों को पता नहीं था ऑर्डिनेंस के बारे में। लेकिन जब लोगों ने ये सुना कि भारत में आईफोन बन सकते हैं, मतलब भारत में अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें बनाने की काबिलियत है, तो लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये सालों से बना रही है। और दूसरी एक और बात जो ज़रूरी है कि भारत में अगर कोई इंजीनियरिंग की बात करे, इंजीनियरिंग एक्सेलेंस की बात करे, तो शायद इसरो का नाम आता है। इसरो और आई थिंक डॉक्टर साराभाई का नाम आता है, डॉक्टर सतीश धवन का नाम आता है, ऑफ कोर्स डॉक्टर कलाम का भी नाम आता है। इसके अलावा काफ़ी अगर हम इंजीनियरिंग पे थोड़ा और चले जाएं तो कोंकण रेलवे के लिए मेट्रो मैन बोला जाता है श्रीधरन जी को, कि उन्होंने कोंकण रेलवे ऐसी बनाई, समय पे बनाई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की गुरु माने जाते हैं। कि भाई जैसे कि एक कहावत है ना, आल्स नो आल्स,
चलो आज कुछ नहीं। वैसे श्रीधरन साहब ने बोला कि कोंकण के माउंटेन है तो क्या हो गया, बनेगी मेट्रो तो बनेगी, टाइम पे बनेगी तो बनेगी। तो इस तरीके से ये सब दिखते हैं, लोग मेट्रो में चलते हैं, इसरो के रॉकेट दिखते हैं, ऑर्डिनेंस दिखता नहीं। तो जैसे लोगों को पता ही नहीं कि इसरो के अलावा भी कोई एक संस्था है जो अच्छी गुणवत्ता का काम निरंतर तरीके से बदल बदल करके अपने को रेलेवेंट रख के सदियों से कर रही है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ नहीं, यही मैं मतलब बता रहा था कि मतलब चूंकि हम लोगों का मेन सरकारी डिपार्टमेंट होने के नाते मेन फोकस काम पे था, और हम लोग, और चूंकि जो हमको और आर्मी से, उसका कारण भी था कि आर्मी से ऑर्डर हम लोग को मिल जाते थे, हम लोग डिलीवर कर देते थे, और जो डिजाइन हमें डीआरडीओ से मिल जाती थी, हम लोग अपने स्किल से उसमें इम्प्रूवमेंट भले कर देते थे और सब काम करते रहते थे, तो हम लोगों को प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती थी। कारपोरेशन बनने के बाद अब चूंकि ऑर्डर हम लोगों को लेने पड़ते हैं हमारे कारपोरेशन को, तो अब इस पे ध्यान देना शुरू किया है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया है, प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स के बारे में मतलब कि इम्प्रूवमेंट करना भी शुरू किया है, उसको हम लोगों ने कॉपीराइट करने लेना शुरू किया है, पेटेंट कराना बहुत शुरू ही अच्छी किया है, बात है, तो उस बहुत ही फील्ड अच्छी में बात आगे है। काम किए हैं और नए नए डेवलपमेंट किए हैं, जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने शुरू किए हैं, और वो लगभग हर कारपोरेट में हो रहा है। आप ये समझिए जी कि हमारी ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री कानपुर है, वो भारत की अकेली पैराशूट बनाने वाली फैक्ट्री है। वो हम्म बड़े से बड़े पैराशूट, मतलब कि छोटे बड़े हर तरह के पैराशूट बनाती है, और अभी पिछले साल उन्होंने जो है एक P7 पैराशूट बनाया है, जिसको कि बताइए। P7 पैराशूट, उसको अगर आप देखेंगे तो वो एक जीप के बराबर वजन को लोड करने के लिए, डालने क्या के बात लिए है। जो है सक्षम है। तो जैसे तो कि यूट्यूब पे अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिका के बारे में इतने सारे पॉपुलर वीडियोस हैं जिसको काफ़ी लोग चाव से देखते हैं। तो मैं अपने लिसनर्स को जो मुझे हमें सुन रहे हैं ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे या फिर जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं और पे, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सर ने नाम लिया है उसको ज़रूर गूगल करें, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जानें कि क्या है, कैसे बनाया है। तो भारत भी है, भारत कम ना आके भारत में शायद उतना उसका विपणन नहीं हुआ, उतनी मार्केटिंग नहीं हुई, लेकिन बहुत अच्छी गुणवत्ता। और अब जैसे सर ने बताया कि काफ़ी ऑर्डर्स भी हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी लोहा मनवा रही है भारतीय कंपनियां, अभी पेटेंट फाइल कर रहे हैं। अभी आपको ऐसे P7 का नाम सुना आपने, iPhone 16 का नाम सबने सुना है कि एक अच्छा प्रोडक्ट है, तो P7 भी एक प्रोडक्ट है पैराशूट को, जो कि जीप जैसे वजन को शायद 1 टन के वजन शायद वो उठा सकता है। तो ये काफ़ी रोचक चीज़ है, जो जिनको क्यूरियोसिटी है या फिर जो एंथुजियास्ट हैं वो ज़रूर इस पर रिसर्च करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सर, ओवर टू यू। तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की हमारी क्षमताएं अद्भुत हैं, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में लोगों ने तमाम तरह के काम किए हैं, कंप्यूटराइजेशन हुआ है हर तरह के, और एक इंजीनियर, मतलब हम लोगों के यहाँ एक अच्छी एक और बात थी कि किसी के काम सीखने में और करने के लिए आबाद स्कोप हम लोगों के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में है, और गलती करना सीखना और नई से नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ होना और उसकी जानकारी लेना, ये एक अद्भुत हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। वो हमारे 36 साल के अनुभव में मैंने पाया कि जो है हमारी क्षमताएं असीमित हैं, और ज़रूरत पड़ने पे हम लोग कुछ भी देश के लिए, समाज के लिए और दुनिया के लिए कर सकते हैं। ये मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में देखा। सर, कुछ कुछ रोचक घटनाएं या कोई ऐसा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, या जिससे आप काफ़ी कुछ नया जो आपने सीखा आपके अर्ली डेज में, या फिर जब आपको लगता हो कि अब तो मैं सब कुछ जान गया हूँ, अचानक से आपने कुछ नया देखा तो आपको लगा अरे ऐसा भी होता है। तो ऐसा कुछ जो आप हमसे साझा करना चाहें। अरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करने के दौरान तमाम सारे अनुभव रहे, तमाम सारे अनुभव रहे, और जैसा कि मैंने बताया शुरू में हम लोग जैसे डीआरडीओ से ड्राइंग मिल जाती थी, या कहीं से टीओटी हो गया, वो हम लोगों ने उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना दिए, और बनाने के बाद एक्सपर्ट हो गए और उसमें बनाने लगे। प्रोडक्ट फेज आउट हो गया, दोबारा पर दूसरा आया, उसको बना दिया। हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम अपना कोई नया डेवलपमेंट करें, लेकिन समय के साथ हम लोगों को लग गया कि हम लोगों को जो है अपने खुद प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, तो उस फील्ड पे उस तरफ हम लोगों ने तमाम सारे काम किए। हमारी हर फैक्ट्री ने काम किया, और मुझे एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एक धनुष तोप नज़र में आती है,
धनुष तोप हम लोगों ने अपने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बनाई और उसको आर्मी ने एक्सेप्ट किया और उसके हमारे पास बल्क ऑर्डर मिले। थोड़ी बहुत शुरुआत में समस्याएं आती क्योंकि किसी तोप को डेवलप करने में उसमें सालों लगते हैं। और जब हम लोग R&D में बेसिकली R&D में ना रहे हो और केवल उसमें केवल मैन्युफैक्चरिंग में लगे रहे हो, तब कोई नया काम करना सीमित साधनों से करना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे विभाग के लोगों ने वो तो बनाई, डेवलप की, आर्मी ने एक्सेप्ट की और उसके ऑर्डर हुए। इसी तरह के टैंक में, इसी तरह के हमारे जो राइफल, जो हमारे जो हथियार हैं, उन सभी में हम लोगों ने डेवलपमेंट की है और उसके नए नए ऑर्डर मिले हैं मार्केट से। JVPC जो छोटी छोटी जो तमाम सारे हम लोगों ने रिवॉल्वर, तमाम तरह के रिवॉल्वर बनाए हैं और हमारी कानपुर की फैक्ट्री में बनते हैं। कई तरह के रिवॉल्वर बनाए, उनकी मांग बढ़ती जा रही है और कई बार अक्सर तो हम लोग मांग पूरी करने में असमर्थ रहे। और इस तरह के लगभग हर फैक्ट्री, क्योंकि मैं 4-5 फैक्ट्रियों के में रहा हूँ, उन्हीं के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन जिस भी फैक्ट्री की मैं जाता हूँ, अगर बात करता हूँ, तो वहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं। तो ये एक अनुभव रहे। दूसरी बात, हम लोगों की ये क्षमता अद्भुत रही है कि जरूरत पड़ने पर कोई भी चीज समय पर डिलीवर कर देना। हो सकता है फेलियर हो, लेकिन सब लोग मिलके एक यूनिट के रूप इसके में बारे काम में करता थोड़ा था। बताइए, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आपने 2-3 बार बोला है कि जरूरत पड़ने पे कभी भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि भाई ये देखो घड़ी में तो 6 बज गए, अब मैं जा रहा हूँ। ये कैसे, ये वर्क कल्चर है कैसे? बिकॉज आपने 3-4 बार बोला है कि हम कुछ भी कर देखिए, सकते हैं, कैसे करते हैं, कैसे बनाया वर्क जाता है वर्क कल्चर? वर्क कल्चर तो देखिए, वर्क कल्चर डिपेंड करता है कि जो टीम लीडर है और उसके साथ जुड़े लोग और फैक्ट्री के लोग जो है। फैक्ट्री के लोग भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, साथ जुड़े लोग भी ह्यूमन बीइंग होते हैं और टॉप लीडर है। बहुत कुछ टॉप लीडर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे मोटिवेट करके लोगों को काम काम ले सकता है लोगों को, और एक साथ यूनाइट होके कैसे जो है काम कर सकता है। ऐसे जब हम लोग जबलपुर में थे, हमें याद है कि जबलपुर में जो माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल होते हैं, उनके आर्मी से इंडियन मिलते हैं। तो साल में करीब 50-60-70 करीब बन जाते हैं और 50-60-70 करीब बन के आसानी से डिलीवर हो जाते हैं। एक साल जब हम लोग वहाँ पर थे जबलपुर में, तो हम लोग करीब जो 166 करीब वो डिलीवर करने थे, 166 करीब डिलीवर करने थे। और हाँ। और और टाइम इंडियन खत्म होने वाला सितंबर में। तो ये जून का महीना था, कोई आधे बने थे, कोई पूरे बने थे, कोई इस तरह का मामला था। तो हम लोगों के सामने चैलेंज आए, तो उस समय हमारे वहाँ पर जनरल मैनेजर थे TTS कृपा वेंकटेशन साहब। तो जी। उन्होंने सबको मोटिवेट करके हम लोगों ने चैलेंज लिया कि ये काम पूरा करना है। तो जो काम 2-2.5 साल का था, पूरी फैक्ट्री एक होकर के लग गई और वो काम जो है वो 2-2.5-3-4 महीने में वो काम पूरा हो पाया। कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि हम लोग घड़ी और कैलेंडर सारा भूल गए थे। दिन रात काम करते थे, दिन रात मैं काम सच कहूँ करते तो थे। विश्वास नहीं होता, मैं सच कहता हूँ, अगर ये किताब आप लिखेंगे तो ये वो किताब आपको सुपरहिट होगी। आपको नहीं हो, हम लोगों को भी विश्वास नहीं होता है। और इवन हमारे जो उस समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के थे, उनको लग रहा था कि ये कुछ फर्जीफिकेशन हुआ है, गलत डाटा भरे गए हैं, लेकिन हुआ ऐसा ही था। और उसमें हमारे जो उस समय के लीडर थे, TTS कृपा वेंकटेशन साहब थे, और हमारे जनरल मैनेजर थे, वो खुद जो है लगे, तवासा था, लोगों को लगाया। इवन जो है कई बार उन्होंने शुरुआती ट्रक और आखिरी ट्रक खुद एज ए ड्राइवर उन्होंने निकाल फैक्ट्री से बाहर किया था। तो इस तरह के ये तो मैं एक गवाह हूँ। हमारी हर यूनिट में, हर हर फैक्ट्री के लोगों ने समय पड़ने पे अद्भुत काम किए हैं। और ये लगभग हर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के इतिहास में, यादों में, किसी हर 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 ऑफिसर के यादों में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमारे यहाँ हैं। ये चीजें ये ऐसे अनुभव बिरले हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हमारे। काफी लोगों को ये जानना चाहिए कि कुछ लोग के जो एक, आई थिंक, एक फिल्म थी, न्यूटन फिल्म थी, न्यूटन फिल्म राजकुमार राव की फिल्म थी, उसमें आई थिंक एक पात्र है, वो कहता है कि ये देश का भार है और मेरे कंधे पे है। तो कुछ कंधे हैं जो देश का भार उठाते हैं, जो तालियों की ज़रूरत समझे बिना काम करते हैं, और देश चलता है, देश चलेगा।
तो ये देश चलाते हैं और इंश्योर करते हैं कि हम सुरक्षित रहें, तो इनके लिए कृतज्ञता। और इंजीनियरिंग है, ये पेट्रियटिज्म एक एंगल होता है, लेकिन हम पेट्रियटिज्म की बात कर रहे हैं। बट इंजीनियरिंग, अगर आपके मन में बहुत इच्छा है लेकिन आपको आता नहीं काम करना, तो आप नहीं कर सकते। तो काबिलियत भी होनी चाहिए, चाहत भी होनी चाहिए, तो इंजीनियरिंग भी है। इसलिए अगर आप लिसनर्स में मुझे सुन रहे हो, तो मैंने पहले इंजीनियरिंग पे फोकस किया, फिर बाद में मैंने इंसानों पे फोकस किया कि अगर काबिलियत तो है मान लिया, बट नीयत कहाँ से आई, नीयत कैसे आई। क्या ये सब 6 बज गया या 5 बज गया अब मैं चलता हूँ फ़ोन बंद कर देता हूँ, नहीं। जो जज्बा है वो भी काम करता है। तो मैन एंड मशीन, या जो होंडा का कॉन्सेप्ट है, मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, दोनों सब तारतम्य में काम करते हैं, साथ में काम करते हैं। तब तो इंजीनियर्स डे में इंजीनियर इंसान और टेक्नोलॉजी दोनों के बारे में बात होनी चाहिए। तो हमने अभी तक अनूप जी की अर्ली जर्नी सुनी, उनकी करियर के बारे में सुना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में। हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कुछ इवोल्यूशन भी देखे, जो कि मीट प्लांट से लेकर के अब ड्रोन तक पहुंच गए हैं। ये सब अपने में ही एक आधे घंटे के पॉडकास्ट एपिसोड्स हैं। मैं बस यहाँ पे नोट करते जा रहा हूँ कि कभी सर खाली मिले तो ज़रूर सर से समय निकाल के, ये एक आई थिंक बड़ा अच्छा शीर्षक है, फिल्म का टाइटल है, मीट से ड्रोन तक। लेकिन उस पर शायद फिर कभी बात होगी। अभी हम चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सर, आपके अनुसार लिगेसी ऑफ इंजीनियर्स क्या है, कि इंजीनियर्स इंडियाज़ डेवलपमेंट में इन जनरल क्या रोल प्ले करते हैं, और कैसे आज़ादी के समय से अभी तक इंजीनियरिंग ने देश को कैसे हेल्प किया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्डिनेंस की बात करें, एज एन इंजीनियर। ऐसे मैं बताऊं या आई थिंक मम्मी बताएं, हीराकुद जो पावर प्लांट है, आज़ादी के समय बिजली की ज़रूरत थी तो हाइडल पावर ही था, न्यूक्लियर पावर था नहीं, थर्मल पावर था। तो पावर प्लांट बनाना, देश को बिजली सप्लाई करना, इसके अलावा स्टील प्लांट बनाना, तो इंजीनियर्स ने, देश का बैकबोन इंजीनियर्स ने ही बनाया है। तो सर, आप अगर कुछ साझा करें कि कैसे इंजीनियरिंग इवॉल्व की है इंडिया के डेवलपमेंट में, इंडिया के विकास में 40-50 साल जितना आपने देखा है, क्या बदलते देखा आपने? तो हम लोग तो जैसा सुनते हैं कि आज़ादी के समय में जब भारत था, आज़ाद हुआ था, तो हमारे यहाँ सुई तक हम लोग बाहर से मंगाते थे। और आज दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम लोग कुछ एक चीज़ों को छोड़ के बना ना पाते हों। तो एक अपने आप में यही मिसाल है। और लगभग हर फील्ड में हम लोगों ने उन्नति की है, और उसका परस्पर तमाम यूनिट्स का योगदान रहा है, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे इसरो हो, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, चाहे फैक्ट्रियाँ हो, जिन्होंने अपने आगे बढ़ के अपना प्रगति में योगदान दिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, जिन्होंने स्टील बनाया उसके लिए और देश की प्रगति में योगदान दिया है। समय के साथ, आज के समय में जो इंजीनियर्स हैं, तो स्पेशलाइजेशन के साथ साथ लोगों का, मतलब कि स्पेशलाइजेशन के साथ स्पेशलाइजेशन का फ्यूजन भी होता जा रहा है। अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर होने के लिए थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल की जानकारी, कंप्यूटर की जानकारी मस्ट हो गई है, और जो एडेड गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल, जानकारी, मतलब और स्मार्टनेस की जरूरत पड़ने लगी है। और आज अकेले कोई काम करना सक्षम आज नहीं हो पाया है, शायद पहले रहा होगा। कोई भी बड़ी सफलता जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं, बिना टीम स्पिरिट के संभव नहीं हो सकती है। जैसे कि आपका जो श्रीधरन जी हैं, उन्होंने जो मेट्रो बनाया, तो बिना सबके सहयोग के, और लोगों ने सहयोग उनको इसलिए दिया क्योंकि उनकी कमिटमेंट थे, उनकी ऑनेस्टी थी और उनका विजन था, उस पर लोगों ने काम किया। कलाम साहब ने भी जो पृथ्वी मिसाइल और ये मिसाइल बनाई, तो विजन उनका था, मेहनत उनकी थी, लेकिन लोगों ने, अलग अलग डिसिप्लिन के लोगों ने मिलके काम किया। ये जो भावना है आगे समय आने के साथ, मतलब समय के साथ में, इस भावना से अगर हम लोग मतलब अब उसी रूप में बढ़ भी रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें हर फील्ड के लोग होते हैं, काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सफलता मिलती है। तो सबको साथ लेकर ही हम लोग जो है सफल हो सकते हैं, और अभी तक हो भी रहे हैं। आज भारत के इंजीनियर्स दुनिया में डंका बजा रहे हैं, हर फील्ड में काम कर रहे हैं, और जो है सक्षम हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। जी बिल्कुल। इंदु जी, आपने भी काफ़ी ये एस्पेक्ट देखा है। आपने भारत की आज़ादी के समय, आप आई थिंक उसके जस्ट बाद आप हीराकुद आई, आपने वहाँ पे आपके पिताजी भी
जो मेरा परिवार अगर मैं बोलूँ, तो हम लोग उत्तर प्रदेश से उड़ीसा की तरफ इसीलिए आए क्योंकि उस समय भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर हर जगह पे स्टील प्लांट्स लग रहे थे, तो उन वहाँ पे वर्कर्स पूरे भारत से आ रहे थे। तो जैसे गांधी जी को गिरमिटिया बोलते हैं ना, अब साउथ अफ्रीका में पहला गिरमिटिया, दूसरा गिरमिटिया, जो गिरमिट परमिट मिलते थे उस ज़माने में। तो हम लोग माइग्रेंट लेबरर्स थे, तो हम लोग आ गए। अब हम लोग ऐसे बोकारो भी आ सकते थे, हम लोग दुर्गापुर भी आ सकते थे। अब राउरकेला बाई चांस आ गए, यहाँ पे जॉब लग गया स्टील प्लांट में, तो पूरा परिवार यहीं बस गया। तो फिर आपने स्टील प्लांट देखा, आपने हीराकुद में भी पोस्टिंग थी वो भी देखा, आपने टेंसा शायद माइंस देखे, आपके पहचान के कोई हैं जो कि धनबाद में भी रह चुके हैं, माइनिंग में काम किया है। उड़ीसा खनिज प्रधान देश है, खनिज प्रधान प्रधान राज्य है, माफ़ कीजिएगा। तो थोड़ा अपना जो आपका जो अवलोकन है, बिकॉज आप एक अनबायस्ड और एक तरीके से देख सकते हैं इंजीनियर की जर्नी, इंजीनियर की लाइफ को। और आपने देखा भी है परिवार में, और राउरकेला को तो बिल्कुल देखा ही है स्टील प्लांट को लगते हुए। उसके बारे में बताइए। और मेरे ख्याल से आपके पास भी कुछ सवाल हैं तो ज़रूर ओवर टू यू। मेरे पिता हीराकुद स्कूल में टीचर थे। उसी समय हीराकुद डैम बन रहा था और मैं बहुत छोटी थी, मेरे को याद भी नहीं है, कुछ थोड़ा सा हल्का सा झलक याद है। मेरे भाई थे, एक चचेरे भाई थे, हम लोग हमेशा चले जाते थे, बनता था देखने के लिए संबलपुर से। संबलपुर में रहते थे, हीराकुडम पास ही में बनता था। और मेरे वो भाई मुझे अपने कंधे पर बैठा लेते थे और चलते चले जाते थे। मेरे को वही याद है, दूर चलते चले जाते, कंधे में बैठकर हमेशा आए दिन घूमने चले जाते थे। मेरे भाई को घूमने का बहुत शौक था, रोज चलते थे। तो मेरा पूरा मेरे माँ, पिताजी और मेरे वो बड़े भाई, हम लोग चचेरे भाई थे, तो हम लोग रोज चले जाते थे। हीराकुद का यही मेमोरी मेरे पास है। उसके बाद जब सेल बना राउरकेला स्टील प्लांट, तो वहाँ नया नया बस रहा था, बड़ी उत्तेजना थी। और इट इज नथिंग बट ए रिवोल्यूशन डन बाय इंजीनियर्स, इजंट इट। तो वहाँ फिर टीचिंग प्रोफेशन में मेरे पिताजी ने डाला, और वहाँ पे इतनी बेनिफिट्स थे, वहाँ भी सरकारी थे, ऐसा बात नहीं हीराकुद में। और राउरकेला में स्टील का बहुत मेडिकल बेनिफिट, एजुकेशन, बच्चों के स्कूल का बेनिफिट, टिफिन बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, बहुत बेनिफिट परिवार के लिए। इस तरह से मेरे पिताजी आए, हम लोग वहीं रह गए। इस प्रकार से इंजीनियर्स का तो भाई, इंजीनियर्स तो मेकर ऑफ, किसान और इंजीनियर तो भाई नियम है। इंजीनियर ना रहे तो सड़कें ना बने, रेल ना बने, प्लेन ना बने, ये तो नियम है। और अभी स्मार्ट सिटी, अभी तो स्मार्ट सिटी इंजीनियर्स की ही देन है ना। इंजीनियर सब उसके साथ में कॉन्ट्रैक्टर जोड़ दो, अलग बात है, कॉन्ट्रैक्टर काम करवाते हैं, लेकिन है ना बुद्धि तो इंजीनियर की चल रही है। इस प्रकार से इंजीनियर बनाते हैं। किसान खाना खिलाता है, इंजीनियर बनाते हैं। इंजीनियर को हम भूल नहीं सकते, मेकर। इसीलिए विश्वकर्मा की पूजा होती है ना, इंजीनियर्स की। विश्वकर्मा की पूजा होती है, हमारे भगवान का रूप मानते हैं। ठीक है, अब मैं अनूप जी से पूछना चाहूंगी कि अगर रिटायरमेंट के बाद वे उलट कर अपना कैरियर को देखना चाहते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, एक चीज। और दूसरा चीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेमोरेबल मोमेंट एज इन योर कैरियर which you will never forget. 2 questions. अपने करियर के रूप में तो मैं यही देखता हूँ कि हमारा करियर एक, मैं तो सामान्य करियर के रूप में ही देखता हूँ। मैं एक 88 में भर्ती हुआ, मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ज्वाइन किया, और पिछले अप्रैल में रिटायर हुआ। तो संतुष्ट रहा, तमाम सारे अच्छे दोस्त मिले, मनचाहा काम करने का काम मिला, और एक इज्जत से रिटायर हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो रिटायर हो गए, और इस दौरान काम से, चूंकि काम लगातार करते रहे, और पता ही नहीं चला कि 30 साल 36 साल कैसे बीत गए। विभिन्न कैपेसिटीज मैंने काम किया, और जिस फील्ड में भी काम करने को मिला मुझे, उस फील्ड में मैंने अपना योगदान दिया। और मोस्ट सेटिस्फाइंग बातें हैं तो हर साल जब जहाँ ज़रूरत पड़ी, इतने सारे यादें हैं। जैसे मैंने एक बताया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में, जब वो हम लोगों के असंभव से लगने वाला टारगेट पूरा हुआ, वो
हम लोगों ने पूरा किया, वो सेटिस्फाइंग कैरियर था। फिर जब कोरोना के समय में जब कोई निकलने के लिए मतलब आना जाना बंद था, ऐसे समय में हम लोगों ने देश की ज़रूरत के सामान बनाए, या पैराशूट फैक्ट्री में हम लोगों ने काम किया, या इसके पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हम लोगों ने या स्मॉल आर्म फैक्ट्री कानपुर में था, तो रिकॉर्ड हम लोगों ने रिवॉल्वर और दूसरे सामान बनाए। तो मैं प्रोक्योरमेंट का भी काम देखता था, तो ज़रूरत के हिसाब से प्रोक्योरमेंट का काम कर पाना और सामान मुहैया करा पाना, ये अपने आप में एक Proudest. सेटिस्फाइंग Your कैरियर लगता था। proudest moment. I want to know है? your proudest. I want to know your proudest moment regarding the career. Engineering प्राउडेस्ट career. मोमेंट Proudest. प्राउडेस्ट मोमेंट तो कोई एक कहना मुश्किल होगा, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शाहजहांपुर में जब मैंने काम किया, तो ह्यूमन रिसोर्स वाले फील्ड में भी मैंने काम किया, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से, और रिकॉर्ड ठीक करना, और जो जिसकी ज़रूरत है पेंशन के काम कर पाना। और कोरोना के समय में अपनी फैक्ट्री, उस समय लोगों के मन में बहुत डर था कि आज मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लोगों के बीच में खड़े होकर उनको हौसला बनाना और एक जनरल मैनेजर के रूप में उनको ज़रूरतें पूरा करना, ये मैं अपने आप को सेटिस्फाइंग मानता हूँ। प्राउडेस्ट मोमेंट तो क्या, सेटिस्फाइंग मानता हूँ। और प्राउड जो फीलिंग वाली में, जैसे व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में था कि हम लोगों ने लगभग असंभव से लगने वाले टारगेट को पूरा कर पाया सभी के साथ मिला के। उसको पूरा करने के बाद बहुत मुझे अभी याद आया कि उन दिनों मेरा पैर में मुझे फ्रैक्चर हो गया था, ऐसे ही पैर में उंगली में फ्रैक्चर हो गया था। और मुझे अभी याद आ रहा है कि जब फ्रैक्चर हो गया तो मैं प्लास्टर कराने के तुरंत बाद, जो कि अभी मैं बेवकूफ़ी मानता हूँ, प्लास्टर कराने के तुरंत बाद मैं फैक्ट्री पहुँच गया, और वो प्लास्टर में लगाए लगाए मैं पूरे शाम, मतलब पूरे दिन काम करता रहा, एक भी दिन की छुट्टी ही नहीं ली। आज मैं उसको बड़ी बेवकूफ़ी मानता हूँ कि जो 20 दिन 21 दिन डॉक्टर कह रहा था, उसकी बात को मना करके मैं एक भी दिन बिना छुट्टी लिए काम करता रहा। और हालांकि उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि मुझे दोबारा प्लास्टर चढ़वाना पड़ा, फिर भी मैंने छुट्टी नहीं ली। तो अब मैं कल्पना करता हूँ कि बताइए कि जो उस समय काम का जुनून ऐसा था कि पैर में प्लास्टर चढ़े चढ़े मैं बिना छुट्टी लिए काम करता रहा, और उसको मैंने हथियार की तरह यूज़ किया। जैसे मुझे कहीं सप्लायर को मैंने ऑर्डर दिया है या कहीं काम करने के लिए दिया है, तो मैं सबसे पहले उतरता था, वही पैर आगे करके उतरता था। लोगों को लगता था लोगों को लगता था लोगों को लगता था कि ये जब इतनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है तो हमारे शर्म के मारे या कोई बहानेबाजी छोड़ के वो लोग काम करने लगते थे। तो इन्वॉल्वमेंट होता है, और साथ के लोग भी थे, मैं अकेला नहीं था, साथ के लोग भी थे। तो वो जब टारगेट पूरा हुआ तो अभी भी मैं याद करता हूँ। तो एंड उसका भी प्रचार मैं आपको भी बता रहा हूँ, उसका भी हम लोगों ने प्रचार नहीं किया। हम लोग आपस में ही खुश हो गए कि अरे हम लोगों ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। और ये है जो हाँ, तो मतलब यही हुआ ना कि वो जो जुनून था, हाँ, जुनून ही प्राउडेस्ट मोमेंट कर सकते हैं उसमें। हाँ। हमारे अच्छा। दोस्तों ने भी, हमारे साथ के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। मुझे याद है कि मैं शाहजहांपुर में था, तो एक मशीन का टेस्टिंग होने वाला था, और जब आ गई तो रात के 10 बजे थे। तो मैं अपने ऑफिस में था, तो लड़के ने, हमारे जो ऑफिसर साथी हैं, उन्होंने हमसे कहा कि साहब वो मशीन आ गई है और रख दी है, और साहब वो सवेरे टेस्टिंग करेंगे। तो हमने उससे कुछ नहीं कहा। हमने कहा कि यार, मतलब सुबह टेस्टिंग करोगे? हमने उससे यही कहा। हमने कहा क्या है यार, सुबह करोगे? तो कुछ चुपचाप चला, और 2 घंटे बाद उसने आके मुझे बताया, मैं ऑफिस में ही था। तो वो 2 घंटे बाद आके बताया कि नहीं सर, वो टेस्टिंग हो गया है और मशीन जो है वो कमीशन हो गई है। ये क्या मतलब बात। अटैचमेंट वाली बात है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ के लोग भी जो हैं, तो हम्म। वो अब जब याद करते हैं, धीमे-धीमे याद आते हैं। और की बात है, काम का। और ये जो जमाना था, ये सेंसर का, सीसीटीवी कैमरा का जमाना नहीं था, जहाँ पे कोई की बात की प्रूफ है। यहाँ पे इंसान
का खुद का मोटिवेशन, ऑफ कोर्स यू कैन गो एंड टेस्ट इट, बट आजकल के तो छोटा सा बनिया का जो दुकानदार या छोटा दुकानदार भी है वो भी एक सीसीटीवी लगाता है कि कोई वर्कर चावल ना चोरी कर ले, कोई सामान ना चोरी कर ले। तो दैट लेवल ऑफ वर्क एथिक्स जो कि यूजुअली लोग सरकारी एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए डीआरडीओ एक बहुत ही गोपनीय काम करता है, इसरो काफ़ी रिसर्च में काफ़ी काम करता है, तो भाई उनकी किताबें छपती हैं तो लोगों को पता है कि दे आर लाइक रॉक स्टार्स। अभी जब इसरो के रॉकेट लॉन्च होते हैं तो उनका टीवी पर लाइव आता है, लोग उसको तालियां देते हैं, उसको फेसबुक पेज पे जाते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक संस्था है जो कि उतनी ही मेहनत कर रही है, इसके बारे में एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ, मैं किसी की अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं दिखा रहा हूँ, जो है वो है, बस सच बता रहा हूँ। अभी मुझे याद आता है, इससे याद आता है कि मैं कानपुर में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में एक फोर्जिंग प्लांट होते हैं जो कि सेल्स की फोर्जिंग करते हैं, जो कि सेल बार से सेल के रूप में उसमें पंच करके सेल बनाते हैं, बाद में उसकी मशीनिंग होती है। तो फोर्जिंग प्लांट जर्मनी का फोर्जिंग प्लांट था। तो मुझे याद है कि वो जब जब वो फोर्जिंग प्लांट कभी ब्रेकडाउन होता था तो ब्रेकडाउन होते ही उसके जो मेंटेनेंस के लोग थे वो तुरंत डांगरी, मतलब मेंटेनेंस वाली ड्रेस पहन के वो गड्ढे में घुस जाते थे और वो तब तक काम करते थे जब तक मेंटेनेंस ठीक नहीं हो जाता था, ठीक नहीं हो जाता है। और ये जो, और उसके लिए वो पास घर से भी लोग आके काम करते थे, और जब तक वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक वो जो है ये काम करते रहते थे। ये उनको देख के मुझे प्रेरणा मिलती थी कि ऐसे लोग काम करने वाले हैं, और एक दूसरे से सीख सीख के लोग आगे बढ़ते थे। जी, मतलब तो ये अभी से बताए तो अभी समय हो गया है, लेकिन कल हमारे यहाँ कानपुर में हमारे स्टेट में बिजली चली गई थी, तो हमारे लोग जो काम करने वाले हैं वो रात भर लगे रहे, और अभी जब सुबह बिजली ठीक हुई तभी वो लोग गए। तो वो डेडिकेशन अभी तक बना हुआ है, और आज भी तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम करते हैं और लगातार करते रहते हैं। तो वो हाँ जुनून अभी भी ऑर्गेनाइजेशन में बाकी है। नई पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी दूसरे तरह से सोचने लगी है, स्मार्ट हो गई है, काम धाम करने वाली है, लेकिन जुनून वाले काम वाले वो अभी तक भी जो है वो बने हुए हैं। तो ये मैं अंत में एक लाइन पूछना चाहूंगी आपसे, एडवाइस टू यंगर स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग जो बच्चे पढ़ते हैं ना, बड़े शौक से पढ़ते हैं, हमारे समय से इंजीनियरिंग मैंने, अरे वाह बड़ा तपाका है, इंजीनियर्स का बड़ा तपाका है, लेकिन पढ़ते 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 लास्ट पहुंचते पहुंचते निकलने के बाद और फिर वो आईटी सेक्टर सोचते, बड़े इंजीनियरिंग पास से ब्रांच से पास किए, माइनिंग से पास किए, कि मैकेनिक, कहीं किसी भी ब्रांच से पास किए, सब चाहते हैं किसी आईटी डिपार्टमेंट में जाके आराम से एसी में काम करें, और कहीं नहीं मिला तो पूछते तो टीचर ही कर लें प्राइवेट स्कूल में जाके। तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस है, उनके मेंटल स्टेटस के लिए? ये हमारी एडवाइस से या आपकी एडवाइस से नहीं चलेगा। ये समाज, आप क्या कहना चाहते समाज देखिए, समाज क्या देखता है कि अल्टीमेटली ये इकोनॉमिकली कितना सक्सेसफुल है, फाइनेंशियली कितना कॉम्पिटेंट है, तो सारे मूल्य और वो चीज़ें उधर जाते हैं। लेकिन और इंजीनियरिंग में भी लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि एक धारा बनी हुई है कि इंजीनियरिंग में जाएंगे तो कैरियर एश्योर्ड है, जॉब मिलेगा, पेट भरेगा और अच्छा फ्यूचर रहेगा। तो आईटी में भी लोग इसीलिए जाते हैं कि पैसे मिलते हैं, फ्यूचर रहेगा। लेकिन अगर जिस फील्ड में इंसान का जुनून है, मैकेनिकल हो, मेटलर्जिकल हो, सिविल हो, ये है, अगर उसमें लगा रहता है तो वो सेटिस्फैक्शन जो मिलता है। हम लोग भले सोच रहे हैं आईटी, लेकिन आज की पीढ़ी का बड़ा तबका ऐसा भी है कि वो अपने अपनी मनचाहे फील्ड में जाता है जिसमें उसका मन लगता हो जाता है। जैसे मेरा लड़का है, वो गोल्डमैन सैक्स में सर्विस करता था 2-3, और वो वहाँ अच्छा काम करता था, उसकी अच्छी इमेज भी थी, लेकिन उसका मन घूमने फिरने में था। तो वो लगी लगाई नौकरी छोड़ के गोल्डमैन सैक्स की, जो मल्टीनेशनल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मल्टीनेशनल है, वो छोड़ के वो आज घूमने घुमाने के काम में लगा हुआ है। आज वो घूम रहा है और वो विदेश गया हुआ है। अब उसका विदेश जाना ऐसे हुआ है जैसे कि हमारा पड़ोस के शहर में जाना है। वो लोगों को घुमाता है। हम मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी इतनी मेहनत पड़ती है और तुम क्यों ऐसा करते हो,
इससे बढ़िया तो गोल्डमैन सैक्स की नौकरी करते। उसने कहा कि मेहनत वहाँ भी इतनी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जो मुझे अनुभव, एक्सपीरियंस और लगत मिलता है वो वहाँ नहीं था। तो आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो उसका एक बड़ा हिस्सा वो अपने मनचाहे काम की तरफ जा रहा है। असल में हम लोग समाज को एक नज़र से देखते हैं कि समाज बहुस्तरीय होता है। एक समय में एक समाज के 6, 7, 8 लेयर्स होती है, बल्कि और भी ज़्यादा होती है। कुछ लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं और दिहाड़ी रोजी रोटी के लिए कार्य कर रहे होते हैं। कुछ लोग थोड़ा पढ़ लिख गए होते हैं, वो थोड़ा और बेहतर के लिए होते हैं। कुछ लोग और बेहतर पढ़ गए हो, वो एलडीसी और यूडीसी के लिए सोचते हैं। कुछ इंजीनियरिंग बन गए हो, कुछ लोग और आगे। तो अलग अलग स्तर के लोग हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने समझ के हिसाब से पेशे तय करते हैं। और जिसको जिस समय पे जो ज्ञान मिल गया या अप्रोच मिल गई या उसको मौका मिल गया, वो हिसाब से आगे बढ़ जाता है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जो थोड़ा सा स्वार्थ वाला चीज आ गया, इंजीनियरिंग में इतना सरकारी पैसा लगता है, इतना लेबोरेटरी सब, इतना सब लेक्चरर सब श्रम करते हैं, तो अगर आईटी सेक्टर में चले जाते हैं तो ऐसा सेक्टर जहाँ की बीए ग्रेजुएशन और सिंपली बीएससी आईटी वाले जा सकते हैं, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले जहाँ ठीक है, आईटी इंजीनियरिंग वाले जहाँ ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग वाले अगर उनको सुविधा के लिए चले जाते हैं तो ये क्या सही है? सरकारी चीजों का दुरुपयोग नहीं है क्या? सही और गलत, देखिए सही और गलत आपको मैं बताऊं, जैसे मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन ऑटो फैक्ट्रीज में बहुत दिनों तक हमने जो काम किए हैं वो उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है। किसी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए तमाम तरह की रिसोर्सेज, तमाम तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है वो बेकार नहीं जाता। जैसे नवल ने पढ़ाई इंजीनियरिंग में की है, लेकिन अभी वो मैनेजमेंट करने के बाद अभी ये काम कर रहे हैं। वो सारा एक्सपीरियंस उनके काम करते हैं। या अगर ऐसे देखें तो सबसे बड़ा नुकसान तो जो सिविल सर्विसेज वाले लोग करते हैं वो करते हैं कि पहले वो इंजीनियरिंग किया, फिर मैनेजमेंट किया, सही बात, एकदम ये तो सही बात है। तो इंजीनियरिंग करते हैं तो सही बात है। वो असल में देखिए, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम लोग परमाणु विज्ञान में पढ़ते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते रहते हैं। वो अपने हिसाब से ट्रेंड चेंज करते रहते हैं। तो उसकी कोई रोका टोकी नहीं हो सकती है। जिसको जो जहाँ पसंद आएगा वहाँ जाएगा। जो पेशा अनलेस अदरवाइज जुनून होगा तो वहीं रहेगा, चाहे पैसा छोड़ेगा, सब कुछ छोड़ेगा, सब कुछ करेगा। तो नई पीढ़ी उसी हिसाब से आएगी जाएगी। कई बार क्या होता है, आदमी को पढ़ने का मन करता है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, लेकिन उसमें उसके नंबर कम आ गए। जैसे जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जरूरी है। अब अगर किसी के नंबर कम आ गए मैथ्स में, तो जो है वो उसको इंजीनियरिंग में, मतलब वो पीसीएम में वो नहीं, मतलब एडमिशन नहीं मिलेगा और वो इंजीनियरिंग में जा नहीं सकेगा। हो सकता है वो बहुत बढ़िया इंजीनियर हो, उसका इंजीनियरिंग बेंड हो। तो बहुत आज की समय के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, समय हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे पे बहुत निर्भर हैं। कई आविष्कार उन लोगों ने किए हैं जो कि इंजीनियरिंग का ही नहीं पढ़े हैं। तमाम सारी जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है वो कभी कहीं किसी स्कूल में नहीं गए, लेकिन उनकी काम की समझ इतनी अच्छी है कि वो जो है अपना काम कर लेते हैं। तो इंजीनियरिंग की समझ होना, इंजीनियर बनना और इंजीनियरिंग में कोई बड़ा उल्लेखनीय काम कर देना, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये मेरी समझ है ऐसी। हाँ, तो सही बात बोले आप। नाउ टू नॉल वॉइस माइक, प्लीज सी योर माइक नवल। हाँ सॉरी, म्यूट पे था। मैं बड़े चाव से ये सुन रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि जैसे अमेरिका में एक कार्टून सीरीज़ है मार्वल कॉमिक्स करके। तो मार्वल कॉमिक्स में आयरन मैन है जो कि टोनी स्टार्क करता है। तो स्टार्क इंडस्ट्रीज वेपन्स बनाती है, तो उनको वो देख सकते हैं कि भाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी वेपन्स बनाती है। वहाँ पे एक एंट मैन है जो कि चींटी की साइज़ का हो जाता है। तो वो
तो जैसे वहाँ पे जो डिस्कशन होता है पॉपुलर कल्चर में भी, तो उसमें वहाँ पर वो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे प्रोफेसर CNR राव एक दिग्गज रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में। हमारे यहाँ पे आई थिंक हमें आपको भी याद होगा एक प्रोफेसर यशपाल करके आते थे। यशपाल स्पेस के बारे में बताते थे। एक प्रोफेसर जयंत नार्लिकर हैं। जयंत नार्लिकर एक बड़े स्तंभ हैं स्पेस रिसर्च के बारे में। तो जब जैसे कि अगर पहले दूरदर्शन में जयंत नार्लिकर साहब या यशपाल जी का सेशंस आते थे जो CSIR कराता था या DST कराता था, जैसे विज्ञान के बारे में बात होती थी, तो ऐसा कोई तो एक तो है डॉक्टर कलाम डेफिनेटली। एक जो जैसे कहते हैं ना कि वो पूछे कि मैं बोलूँ रेफ्रिजरेटर, आप बोलो LG या आप बोलिए सैमसंग, तो दिमाग में पहला नाम क्या आता है? दैट शोज अ टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल। तो अगर मैं बोलूँ इंजीनियर, तो भारत में किस इंसान का नाम सबसे पहले आता है? तो वो जो है, तो इंजीनियर्स मुख्य धारा का हिस्सा बने। और जैसे कि अमेरिका में छोटा बच्चा इलॉन मस्क को समझता है कि भाई इंजीनियरिंग का भगवान है, उसने इलेक्ट्रिक कार बना दी, उसने SpaceX बना दिया। अभी देखिए बोइंग के प्लेन नहीं जा रहे, हमारी सुनीता विलियम्स को बचाने के लिए कौन आ रहा है? इलॉन मस्क आ रहा है। इलॉन मस्क अपना बनाएगा। मान लीजिए अभी इसरो, अगेन मैं इसमें बता देता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा पिच है। मैं IIT मद्रास में जो सेकंड ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, वहाँ पे छोटा सा इंक्यूबेशन सेंटर है। वहाँ पे एक अग्निकुल करके एक छोटा सा स्टार्टअप है जो IIT मद्रास के एलुमनाइज ने बनाया है। अग्निकुल ने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया है, आई थिंक पिछले साल की बात है। अग्निकुल के रॉकेट, तो वो लिटरली SpaceX का भारतीय वर्जन है। तो बट बात यह है कि एक समय पे नासा के पास एक लड़का गया जिसका नाम था इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने जाके बोला कि नासा को आप क्या करते हैं? तो बोले मैं रॉकेट लॉन्च करता हूँ। तो बोले कि अगर हम रॉकेट बना के लॉन्च करें, आपके जितना खर्चा है उसे 10% कम में लॉन्च करें, तो आप ट्राई करेंगे? तो जरूर नासा ने बोला होगा, मैं बस कल्पना कर रहा हूँ, नासा ने बोला होगा कि भाई हम तो बहुत टेस्ट करेंगे कि सामान, मान लीजिए खाना भेजना है सुनीता विलियम्स के लिए, तो भाई वो रॉकेट फट गया तो चलता है, बट अगर इंसान जा रहे हैं तो रॉकेट नहीं फट सकता है। और प्लस वहाँ पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बोइंग जैसे कॉन्ट्रैक्टर जो कि बैठे हुए हैं, लॉकहीड मार्टिन जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो एक छोटा सा लड़का तो नहीं बोलूँगा, बट इलॉन मस्क नाम का एक आदमी मान लो गया हो किसी दिन, तो नासा ने बोला होगा ठीक है तुम बना के दिखाओ। जो भारत में अभी छोटे छोटे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं या ऐसे हैं, तो ऐसे आते होंगे वो लोग। तो अमेरिका में ये बड़ा कल्चर है, और वहाँ पे फिर वो रॉकस्टार बना, उसने SpaceX बनाया। आज जब बोइंग गिर रही है तो कोई एक बच्चा खड़ा है बचाने के लिए जो सुनीता विलियम्स को वापस लाएगा। अगर आज इलॉन मस्क नहीं होता तो क्या होता? वो अलग बात है कि बोइंग का प्लेन वापस आ गया, वो नहीं फटा, तो सुनीता विलियम्स उसमें आ गई होती, नहीं मरी होती। बट जहाँ हल्का सा भी चांस है कि प्लेन ये एयरक्राफ्ट फट सकता है, उसमें इंसान को नहीं भेजेंगे, तो वो कैसे आएगी बेचारी वापस? तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि भारत में इलॉन मस्क जैसे रोल मॉडल या उतने बड़े नहीं हैं तो छोटे, जैसे विख्यात CNR राव हैं या यशपाल हैं या जयंत नार्लिकर हैं, वैसे रोल मॉडल्स ज़रूरी हैं। तो फाइनल क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा मोनोलॉग हो गया, काफ़ी चेहरे से लग रहा है कि इंदु जी भी काफ़ी विचार में पड़ गई कि मोनोलॉग इतना लंबा क्यों हो रहा है। बट इंटेंशन ये था कि बाहरी देशों में देखते हैं तो ये बड़ा कॉमन कल्चर है कि आप अगर आप कैलिफोर्निया जाएँ तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे आप जाके बड़े बड़े प्लांट देख के यू गेट इंस्पायर्ड बाय द लार्ज रॉकेट्स एंड थिंग्स। वैसे आई थिंक आजकल कॉलेजों में टैंक रखने का एक नया कल्चर शुरू हुआ है। जो पुराने तोप हो जाते हैं, तोप तो रिटायर्ड तोप है, वो कॉलेज भेज देते हैं कि बच्चे कॉलेज में तोप देखेंगे तो शायद वो अगर हमारा पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं तो तोप देखें, पॉडकास्ट सुने। और अनुप शुक्ल जी, आप मेंटरिंग क्यों नहीं करते? बताइए, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, आप यंग लोगों को मेंटरिंग क्यों नहीं करते? ऐसा कभी सोचा नहीं, लेकिन जब यंग कोई सिस्टमेटिक मेंटरिंग नहीं मिलते हैं, वो जिस फील्ड कर रहा हो तो हौसला बढ़ाने का काम तो बूढ़े हो से जो उसकी वजह ये कि मैंने सर आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, शायद आपका शायद स्पीकर थोड़ा दूर हो गया है चेहरे से जी। तो मेंटरिंग की जहाँ तक मेंटरिंग की बात है तो कोई सिस्टमेटिक मेंटरिंग जैसे कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जिंदगी में पास हम मिलते हैं और जिस फील्ड में भी काम है हम या तो उसका हौसला अब जाएगा। जब मैं मेरे गुरुजी स्पीकर नहीं चल रहा है।
हाँ वही पिछले 1-2 मिनट से सर आपकी ऑडियो बहुत एकदम नहीं आ रही है। अगर आप चाहें तो आप ड्रॉप ऑफ करके फिर से ज्वाइन कर सकते हैं और हम उसको बाद में एडिट में डाल देंगे। अभी ना क्या? नहीं नहीं, आवाज़ एकदम बीच में 5-2 सेकंड चली जा रही है। तो मेरा ये अच्छा, सुझाव है कि बस ड्रॉप ऑफ कर जाइए और फिर से ज्वाइन कर लीजिए, तो शायद हम बस वो 2 मिनट में ही ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। हाँ। कैसा लगा, कैसा चल रहा है मम्मी बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा श्रेय मैं भी, थोड़ा अपना कॉलर थोड़ा मैं भी ऊंचा ऊंचा कर लूँ। हाँ, अभी हो गया, आ रहा है अरे अभी। सर बहुत बढ़िया हो गई, कैसे हो गई पता नहीं, एकदम लगभग पता 10 गुना नहीं। बेहतर हो गई। तो जो मेंटरिंग वाली बात है, देखिए मैं किसी फील्ड में जानकारी हो या नहीं हो, वो इंसान कहीं भी काम करता रहता है, तो हाँ उसको उत्साह बढ़ाना मतलब मुझे सबसे पहला काम लगता है, और मैं बढ़ाता भी हूँ हर फील्ड में। जी तो उसके जी पीछे कारण ये है कि हमारे मैंने गुरु जी थे, एस के वाजपेयी जी थे। वो जी इंटरमीडिएट में मेरे गुरु थे, वो इंग्लिश हमको पढ़ाते थे। तो जी यूपी बोर्ड में इंग्लिश, यूपी बोर्ड की इंग्लिश बहुत टफ मानी जाती थी। हम लोग और कक्षा 6 से हम लोग एबीसीडी सीखे थे, तो अंग्रेजी और भी माशाअल्लाह थी। तो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हम लोग अच्छे नंबर लाते थे, लेकिन अंग्रेजी में कम आते थे। तो उन्होंने दिसंबर में हम लोगों से कहा कि तुम बेटा आया करो, इंग्लिश लिख के लाया करो, हम चेक कर लिया करेंगे। तो केवल चेक करते थे कॉलेज में 1 घंटा 1.5 घंटा। उसी दौरान हम लोगों को मॉरल बूस्ट करते थे, बताते थे कि बेटा ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, और वो लड़का ऐसे टॉप कर गया, वैसे टॉप कर गया। तो 2-3 महीने उनकी संगत में हम लोग रहे, तो हम लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए कि हम लोगों को लगता था पास कैसे होंगे इंटरमीडिएट में। और उन लोगों में से 3 लोगों की हमारी यूपी बोर्ड में पोजीशन आई थी, तो मतलब 1 से 10 तक। तो वो हम लोगों से कहते थे, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो तुम लोग नहीं काम कर सकते हो। वो बात पता नहीं 81 की है, लेकिन मतलब लगभग आज से लगभग हो गए 43 साल हो गए। तो वो बात हमको उनकी हमेशा याद आती है। तो जो भी हमारे संपर्क में आता है, किसी के भी संपर्क में हो, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी हो, उसको मैं बताता हूँ कि भाई तुम ये कर सकते हो, इसमें सफल हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो। तो मेंटरिंग इस लिहाज से करते हैं। बाकी वो सिस्टमेटिक मेंटरिंग में अभी उस बारे में सोचा नहीं, जी और कि मैं ऐसा कर सकूं। और यही मेरा कहना है। जो मतलब मुझे मुझे आदमी की, इंसान की क्षमताओं में अगाध विश्वास है। हमें लगता है कि हमें लगता है जैसे कि हनुमान को अपना बल याद नहीं था कि समुद्र पार कर जाएंगे, लेकिन जामवंत ने उनको उनके बल का याद दिलाया कि तुम्हारे अंदर ये है। ऐसे ही हर एक इंसान जो है किसी दूसरे के लिए जामवंत हो सकता है, जो कि उसको हनुमान बना दे, उसके बल का याद दिला दे। किसी की तारीफ करना, उत्साह बढ़ाना अपने आप में एक बहुत अच्छा काम है। उसके लिए सफल इंसान होना ज़रूरी नहीं है, या बहुत अच्छा, बहुत बड़ा आदमी होना ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी आप आपके आस-पड़ोस का साधारण से साधारण इंसान भी आपके अंदर इतना उत्साह भर देता है कि आप जो है अकल्पनीय काम कर जाते हैं। तो बिल्कुल मेंटरिंग इसी रूप में करता रहता हूँ, जो कि लोगों का हौसला बढ़ाना कि आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं अगर एक उदाहरण दूं, एनी एनी क्लोजिंग कमेंट्स मम्मी, बिकॉज हम लोग बिल्कुल अंत तक पहुंचे, मेरे सवाल तो काफ़ी ख़त्म हो गए, बट अभी मैं फ्लोर ओपन करने वाला हूं ताकि हम सब इस पे बात करें, बिकॉज हम इसको रैप अप करेंगे। बट एनी एनी क्वेश्चंस मम्मी, इंदू इंदू जी या मम्मी, जो भी आपकी कोई सवाल? आखिरी सवाल मेरा यही है कि भाई इंजीनियर रहे, एमएससी रहे, केमिस्ट्री रहे, बायोलॉजी रहे, जिस सब्जेक्ट में पढ़े हैं उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी कारण से सरकारी पैसों का दुरुपयोग है, लैब यूज करते हैं, अब डॉक्टरी मेडिसिन पढ़ करके आप आईटी में चले जाएंगे, यूपीएससी में चले जाएंगे, ये इसे मुझे ठीक नहीं लगता। बस नहीं, मेरा यही। आपका बात सही है। हाँ, आपका बात आपके हिसाब से सोचना सही हो सकता है, लेकिन आज की दुनिया में कोई किसी भी फील्ड में काम करने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम्म और आप देखेंगे जैसे कि जो अगर एक ही फील्ड में जब चलता चला जाता है इंसान, तो फिर वो नैरो होता चला जाता है। बोले एमबीबीएस बनेगा
फिर किसी एक फील्ड में जाए, मान लो एमबीबीएस में गया, फिर सर्जरी में गया, फिर ब्रेन सर्जरी में गया, ब्रेन सर्जरी के बाद चला गया। तो ये एक स्पेशलाइजेशन वाला मसला है। ऐसे ही ऐसा नहीं दूसरी लगता तरफ आपको दूसरी तरफ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं क्या नहीं, जैक ऑफ इसीलिए ऑल आप नहीं, पूरा जैक एकदम ऑफ ऑल नहीं, जैक ऑफ वो मेन ब्रांच सपोर्ट, मेन ब्रांच आपका मतलब कि मेन पिलर के रूप में रहती है। बाकी चीजें सपोर्ट करती हैं, बाकी चीजें सपोर्ट करती हैं, बाकी चीजें आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल सपोर्ट करती हैं, और उसके माध्यम से आदमी सफल होता है। इंसान की भी इतनी फैकल्टीज होती हैं, वो तो हम लोगों ने इंजीनियरिंग मेडिकल ये सब बना दिया है, लेकिन इंसान अपने आप में, इंसान की क्षमताएं अद्भुत होती हैं। लोग कहते हैं कि हमारे जो दिमाग है उसका हम लोग 2% या 5% ही उपयोग कर सकते हैं, कर पाते हैं। तो ऐसे ही इंसान की फैकल्टीज भी अद्भुत होती हैं। जैसे अब हम लोग लियोनार्डो दा विंची का उदाहरण देखें, वो इंजीनियर भी था, वो पेंटर भी था, वो आपका तमाम फील्डों में था, ऐसा अद्भुत इंसान था। तो हर फील्ड में वो था। इसी तरह ही हर इंसान कहाँ कहाँ जाता है, क्या बनता है। अभी हमारे देश के जितने बड़े बड़े लीडर रहे हैं, शुरुआत में बैरिस्टर रहे थे, बैरिस्ट्री उनके किनारे हो गई, बैरिस्ट्री उनके किनारे हो गई, वो देश को लीड करने के लिए आगे जो आगे। तो जरूरत के हिसाब से, समाज के हिसाब से, अपने हिसाब से आगे बढ़ता है इंसान। और ये अपना सोचना है, बाकी कहाँ कौन कहाँ जाता है ये वो बात है, मानती हूँ मैं। जी, ये बहुत सही देखिए, बात कुछ है। बातें आदर्श होते हैं और कुछ बातें समय के अनुसार बदलती हैं। समय के अनुसार हाँ, इंसान बदलाव सही बात है, जरूरी है। सही बात है, हाँ, सही बात है। और ये मेंटरिंग मैंने इसलिए भी बोला कि जैसे अमेरिका में अभी टिकटॉक बैन कर रहे हैं, करने की बात हो रही है, भारत में बैन कर दिया गया है। एक तो चलो किसी एक देश का उस पर स्वामित्व है इसलिए है, बट दूसरा ये भी है कि काफ़ी यंग जो ब्रेन है जिसको काफ़ी स्टिमुलेशन चाहिए, जो यंग इम्प्रेशनेबल ब्रेन है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने बचपन में दूरदर्शन था तो मैंने प्रोफेसर यशपाल को देखा, या जयन नारलीकर को देखा, या ब्रह्मांड देखा, मैंने चंद्रकांता भी देखा दूरदर्शन पे, बट ऐसा बात नहीं है, पर प्रभाव पड़ा। और आजकल के पॉपुलर मीडिया जैसे कि स्नैपचैट या टिकटॉक या कोई भी मीडिया पे अगर ऐसा कंटेंट ना मिले, या हिंदी भाषा में या जो भी भाषा एक्सेसिबल है, तो काफ़ी एक उनका जो ब्रेन स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो एक बार उनको आसान स्टिमुलेशन मिल करके मेंटल जो वो हो जाएगा तो वो कहीं दिमाग एग्जर्ट नहीं कर पाएंगे। और चैट जीपीटी काफ़ी चीज़, और मैं थोड़ा सा एआई का भी टच करूँगा क्योंकि 2024 में एआई की बात किए बिना कोई बात शायद ख़त्म नहीं हो सकती है, कि चैट जीपीटी में लिटरली हर सवाल के जवाब हैं, हर प्रॉब्लम का आंसर है। तो इसीलिए क्योंकि जैसा आपने बताया कि कैरियर हर आदमी जानता है या करता है, उसमें मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि एक रीइंफोर्सिंग फैक्टर जो होता है, जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क होता है, वो किसी पे टकराती है तो उससे नेचुरल फ्रीक्वेंसी एग्जर्ट करती है तो फिर वो वाइब्रेशन शुरू करता है। तो गुरु या एक मोटिवेटर या एक मेंटर एक ट्यूनिंग फॉर्क की तरह मैं समझता हूँ, कि जब वो टकराता तो एक फ्रीक्वेंसी आती है, जब एक विचारधारा, तो लगता है कि ये भी एक ऑप्शन है। कोई स्पेस के बारे में बात करे या कोई नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करे, कोई एक विधा के बारे में पैशनेटली बात करे, और जैसे कि फिल्मों के बारे में बात होती है, म्यूज़िक के बारे में बात होती है, बहुत सी चीज़ों के बारे में आजकल के देश के परिवेश में काफ़ी चीज़ों में बात होती है। तो इस पर एक बात खाली हो, और जो निस्वार्थ तरीके से कोई करके डालता रहे, कोई सुनता रहे, सुने या ना सुने, जो सुनना चाहता है वो सुने, कोई एक बाहर निकले, तो शायद हो सकता है। और ऐसा मुझे लगता है। दूसरा है कि एक जो एक स्टेटमेंट जिसने शायद मेरा एमबीए का इंटरव्यू क्रैक कर दिया था, यूजुअली कैट, मैं एंड में ये बोलना से क्लोज कर रहा हूँ। मुझे बस ऐसे ही आया, मैं ये आईएम में यूजुअली एडमिशन टफ इसलिए होता है क्योंकि मार्क्स बेसिस पे नहीं होता, उसमें जीडीपीआई होता है। तो लिटरली आईएम के प्रोफेसर्स बैठते हैं, वो चेक करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो मेरे से एक टफ सवाल आया, और मैं इंडियन ऑयल में काम कर रहा था, सरकारी अधिकारी था। तो मेरे कहते हैं कि आप क्यों छोड़ोगे ये सरकारी जॉब, आपको पीएफ पेंशन ग्रेचुइटी सब मिल रही है, आप छोड़ के एमबीए क्यों करोगे, और आपको स्टडी लीव तो मिल नहीं रही है। तो मैंने कहा कि सर मुझे मैनेजमेंट बहुत पसंद है, जैसा अनुप जी ने भी बताया कि मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। तो मैंने एक लाइन बोला कि सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो ये जो बल्ब है, मान लीजिए ये बल्ब मान लीजिए 100 वाट का है, तो ये 100 वाट की ही लाइट देगा, ये 300 वाट की लाइट नहीं देगा, ये 500 वाट की लाइट नहीं देगा। बट ये जो इंसान है वो जब मोटिवेट हो जाएगा तो ऐसा काम कर देगा जिससे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो खुद आश्चर्यचकित हो जाएगा कि यार मैं था वो। जैसे सर बता रहे हैं कि इन्होंने वो जो सामान बनाए या जो कलपुर्जे बनाए,
वो आज भी अचंभित है कि वो मान नहीं सकते अगर वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता तो वो मान ही नहीं सकते कि एक सरकारी अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी इतना काम कर सकता है। मैं किसी को भी बोलूँ या जब ये पॉडकास्ट जाएगा लाइव तो कोई मान ही नहीं सकता ऐसा हो सकता है, लोग कहेंगे ये सब बोलने की बातें हैं। तो पॉइंट इज़ कि जब मैंने ये कहा कि एक 100 वाट का बल्ब खाली 100 वाट ही दे सकता है, लेकिन एक इंसान मोटिवेशन पे कुछ भी कर सकता है, तो मुझे वो मोटिवेशन मैनेजमेंट में सीख करके इंजीनियरिंग में लाना है। तो जो प्रोफेसर थे वो बैठे हुए थे कैट के इंटरव्यू में बोर्ड में, वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं। अब मुझे प्रोफेसर का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बहुत लेजेंडरी प्रोफेसर है इंदौर के। कभी उनके साथ भी पॉडकास्ट आएगा तो जिसका मैं जिक्र, ये कुछ मसाला मैं अगले एपिसोड्स के लिए भी बचा के रख रहा हूँ। तो मैंने उन्होंने मेरे को ऐसे देखा, ये कौन लड़का आया है, और मेरे को ऊपर नीचे देखा। तो अब इतने कन्विक्शन से बोल रहा था मैं कि सर बट इन सब मेरा कोई कैपेसिटी नहीं, इंसानों की कैपेसिटी नहीं है, हम मेरे को कोई 100 वाट इधर नहीं लिखा है, मैं 1000 वाट भी कर सकता। अच्छा नेक्स्ट, तो उन्होंने उसके बाद कुछ पूछा ही नहीं। बाद में मेरे को जब फीडबैक के जाया तो बोले कि वो प्रोफेसर ने जिसके जैसे कि अगेन अभी मुझे थोड़ा ह्यूमिलिटी लाना चाहिए अपनी बातों में, जैसे कि वॉरेन बफेट एक बहुत लेजेंडरी हैं, उनके प्रोफेसर एक भी बेंजामिन ग्राहम ने किताब लिखी है सिक्योरिटी एनालिसिस, जो कि अपने क्षेत्र में बाइबल है सिक्योरिटी एनालिसिस। तो बेंजामिन ग्राहम जहाँ के प्रोफेसर थे, वो उन्होंने अपने जीवन में खाली एक ही बच्चे को ए दिया था, वो बच्चा वॉरेन बफेट था। तो बाद में मुझे पता चला कि उस इंटरव्यू में जो सैकड़ों बच्चे आए उसमें से लगभग 10-20 सेलेक्ट हुए, 15 जो भी सिलेक्शन रेशियो होता है उसमें नंबर 1 जिसके ऊपर कोई हाथ ही नहीं डाल सकता, जिसके ऊपर मतलब जैसे बोलते हैं कि ये मेरा वीटो है। तो वो प्रोफेसर ने ये सुना, प्लस मैंने और भी काफ़ी बातें बोली। तो वो प्रोफेसर ने बोला बाद में जब मैं कैंपस में था 2 साल, वो प्रोफेसर आएंगे, वो देखते हुए दवा कि ये लड़के में मैंने जुआ खेला है, ये अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं डर के कोने में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये प्रोफेसर ने मेरे को, क्योंकि GDPI है, GDPI में या ग्रुप डिस्कशन है पर्सनल इंटरव्यू में कोई मापदंड तो है नहीं कि मैं जो सारे सवालों के जवाब दिए, मैं सारे जनरल अवेयरनेस के जवाब दिए, मेरा क्यों नहीं हुआ कि भैया मेरे को 100 में से 70 क्यों मिले, 85 क्यों नहीं मिले, देयर इज नो वे ना। पर्सनालिटी जजमेंट तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। कैट में आप GDP क्वांटिटेटिव में या वर्बल एबिलिटी में, रीजनिंग में मार्क्स को मैथमेटिक्स है, आंसर 1 होगा या 2 होगा, इंटरव्यू के मार्क्स तो उनके हाथ में रहते हैं। बाकी जूनियर प्रोफेसर से बैठते हैं उस पैनल में, IIM के इंटरव्यू पैनल में। तो जब सीनियर प्रोफेसर ने बोल दिया तो फिर यूजुअली वो फिर नॉर्मल बात है कि आपको हॉबीज़ क्या हैं, आप क्या करते हैं। तो ये लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें मुझे सिर्फ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं प्रिपेयर करके नहीं आया था। हर्षा भोगले से पूछा जाता जब सचिन का रिटायरमेंट हो रहा था, उन्होंने कमेंट्री की थी, तो कैसा लगा था, उन्होंने कैसे बताया दूसरों को, वो प्रिपेयर करके नहीं आए थे। तो ये जब मैं इंटरव्यू में सतह निकला, आई थिंक इंदु जी भी बताएंगी कि एक बहुत ही जूनियर क्लास में एडमिशन के लिए मुझे कुछ पूछा गया था, तो मैंने स्वतः शेर के बारे में कुछ बोला था। तो वो साक्षी है कि वो मेरे को मुड़ के देख रही है, ये और मैं शायद 3 साल का था या 2 साल 4 साल का था, 3 साल का, मैंने ऐसा कुछ बोला, मुड़ के देख रही है मेरी मम्मी, ये कहाँ से निकला भाई। तो चलो वो भी बता दीजिए, ये थोड़ा ह्यूमिलिटी के साथ कि भाई मैं अपने कॉलर नीचे ही रखूं, ताकि बताइए वो क्या, वो आज से बता। केजी क्लास में एडमिशन कराने गए तो उनके प्रिंसिपल ऐसे मैं बैठी पूछ रहे हैं, कुछ पूछे, क्या पूछे मेरे को याद नहीं, लेकिन एक चीज यही याद आ रहा है, क्वेश्चन शेर देखे हो, तो मैं सोची ये क्या क्वेश्चन है छोटा सा बच्चे के लिए। बोलता हाँ, कहाँ देखे, टीवी पे। आई वाज शॉक्ड विद द आंसर। मेरे से कोई पूछता नहीं था, मैं तो देखे नहीं देखे हैं, नहीं देखे, नहीं देखे है ना, टीवी पे देखा है। दोबारा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में उसने क्या, हाँ देखा है मैंने, श्योर शॉर्ट आंसर। 3 साल का बच्चा, छटाक भर, मैं तो कहूंगी छटाक भर का बच्चा। तो इंजीनियर्स डे पे ये कहें कि 100 वाट का बल्ब या एक मशीन या एक रॉकेट या एक ट्रांसफार्मर या एक तोप उतनी ही कारगर है, या हाथ का एक फ़ोन उतना ही कारगर है जितना उसको चलाने वाला। एक फ़ोन का ऑपरेटर, एक टैंक का ऑपरेटर, एक फ़ोन का ऑपरेटर, एक टैंक का ऑपरेटर, एक सर्जन जिसके हाथ में नाइफ है, वो सर्जन भी इक्वली मैटर करता है। तो इंजीनियर्स डे पे हमने काफ़ी इंजीनियरिंग की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, सामानों की बात की, प्रोडक्ट्स की बात की, मशीनों की बात की, बट हम चाहेंगे कि हम इंसानों की भी को भी ध्यान दें कि इंसान एक्चुअली मैटर करते हैं। इसमें मैंने काफ़ी ध्यान दिया। बहुत ही अच्छा लगा बात करके, ये शायद मेरे साथ सबसे अच्छे पॉडकास्ट में से एक रहा। अब मैं फ्लोर ओपन करता हूँ, बिकॉज अब शायद मैं लिसनर्स, ये शायद कंटेंट कट भी सकता है या आ भी सकता है, बट ये फ्लोर अब ओपन है।
बताइए कैसा? आपको बहुत अच्छा लगा मुझे बातचीत करके नवल जी और इंदु जी, आपसे बात करके। मैंने जैसे पहले बताया कि दोस्ती हम लोगों की फेसबुक बहुत पुरानी है, लेकिन बातचीत आज पहली बार हुई और इतनी खुशनुमा बातचीत और तमाम सारे अनुभव जो बिना तैयारी के मुझे याद आए वो मैं बोलता गया। और बहुत अच्छा अनुभव रहा आप लोगों से मिलके बातचीत करके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं कामना करता हूँ कि आपका पॉडकास्टिंग बहुत अच्छा रहे, और बहुत कुछ इस दौरान मैंने सीखा भी, पढ़ने के लिहाज से, लिखने के लिहाज से और मेंटरिंग वाले लिहाज से भी। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। धन्यवाद। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुछ क्लोजिंग कमेंट्स मम्मी इंदु जी? मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे फेसबुक फ्रेंड, जो कि मैं जानती थी इंजीनियर भी हैं, वो आप आए और आप नवल सिंह आपने एक्सेप्ट किया। मैंने रिक्वेस्ट किया आपको कि उनको इंटरव्यू में बुलाने का, यू हैव एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट। थैंक यू टू माय सन हु इज आल्सो एन इंजीनियर। ऑफ कोर्स आई एम सीइंग हिज फेस। मैंने अभी उसका नया रूप देख रही हूँ, जो कि वो अपने कमरे में बैठा, मैं अपने कमरे में बैठ रही हूँ। वो जो बोल रहा है, जो फेस टू फेस मेरे सामने नहीं बोलता है, वो भी बोल रहा है, मैं सुन रही हूँ। थैंक यू to both of you, to both of the engineers. One is Facebook friend, one is थैंक son. यू, थैंक यू। थैंक यू। आपने हम दोनों को साथ में लाया, आपने काफ़ी एक अच्छा रोल अदा किया, तो बहुत ही धन्यवाद। मेरे लिए तो आप हमेशा ही रोल मॉडल रही हैं। बट ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये डिस्कशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक बात भी यू। काफ़ी हो गई है, अभी सबको याद खाना वाना भी खाना है एक्सरसाइज नहीं जाना है, चलिए, कुछ थैंक कटिंग यू। होगा। हाँ, तो जस्ट मैं ये क्लोज कर रहा हूँ, और कुछ एडिटिंग करूँगा, कुछ फिर आप भेजूंगा आप लोगों को कॉपी। ठीक है जय मुझे। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा यू, लगा। थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, थैंक यू।